This very special webinar by our expert faculty on MS Excel, CA Vijay Agarwal ji. In fact, just mentioning that expert faculty will be undermining his worth. He is the Champ Excel. Uh, this is the way he has named his website, his YouTube channel, Champ Excel. He is the most valuable professional by Microsoft from 2014 to 2018. He's a good friend of mine, my neighbor, and Excel is the way of life for Vijay Bhai. His programs are so popular that last time actually we faced an issue that and people were very angry because the program could not go live on YouTube in time. Uh, there was some technical issues, and then so I extend my apologies for that. Even on LinkedIn I mentioned that, and then we have sent the recording of those sessions. uh, I would I mean, before requesting Vijay Bhai to start his deliberation, we have with us very young and dynamic CA Shreya Bansal from Batinda. I would request her to give a brief background and welcome our guest speaker, Vijay Agarwal ji, for today's webinar. And for the questions, we'll be taking both from the Zoom chat as well as the YouTube chat. So over to you, Shreya ji. Thank you so much, sir. A very warm good morning to all the participants. Uh, I, C. Shreya Bansal, welcome you all in today's knowledge sharing session on today's topic using Excel as audit tool by CA Vijay Agarwal ji. To talk about Vijay Agarwal ji, he's a big data analyst and automation expert, a chartered accountant and company secretary by profession with 25 years of rich experience. Currently working as a freelancer, providing Microsoft Excel solutions and trainings to corporate. He has been awarded Most Valuable Person award for 4 consecutive years for 2014 to 2018. Delivered various seminars at various esteemed platforms and now making our lives easy with webinars in these tough times. He's also owner of the website and YouTube channel with the brand name Champ Excel. And with these and without further delay, I would request Vijay Agarwal ji to kindly take up this deliberation, sir. Thank you. Thank you, Shreya, for nice words. And also thank you very much, Sanjeev ji. So it's all because of you. Like there is a lot of inspiration. We all, not only me, like all the young chartered accountants and the students, so taking a lot of inspiration from you. So the way like you are doing service to the not only for CA community, but like apart from that, lot of other works also you are doing. So most of you already know last week also we had a very good experience, lot of new learnings. So today the topic is little different. So this topic generally like I have not taken so much, but still I try to give some outlooks that okay, how to use Excel as an effective tool. So like as an audit tool. So friends, most of us like belongs to these CA communities, chartered accountants, and the biggest task for a chartered accountant and like practicing chartered accountant or maybe a person who is working in a company, so that how to do some like audit or like how to find something unusual things in data, how to like see that okay there is no revenue loss is there. So all those things like wherever we find that okay there is some something, there may be revenue loss, maybe there may be some mistake chances are there, maybe there is some fraud type of things are there. So how to effectively find those things. So earlier it was there that okay the things were not so complicated, the data was also very small, and the same like auditor, so he was working for a company for last 20 years, 10 years, 15 years, and the staff was also more or less the same. So it was everything as a like family type of things. So everybody knew that okay such type of things are there, this is the business, so everything was on tips. So even a small unusual things were there. So that was come to know
maybe to the management and to the auditor. But now the scenarios have changed. So now, like the business also has grown up manifold. Also, like most of the things which earlier we used to have through manual, so now everything is like on to computers and clouds. So the data size is also very, very big. And also the business size, that's not only a single company, a single branch. So now we are not only having different branches in the country, but maybe out of the country also, like different, maybe the currencies are also there, different taxes are also there. So in such a scenario, how to take help of Excel, that like we are not only compromising on the quality of our audit, but at the same time, like it is very, very time saving also. Like it is very, very effective also. So Excel, like giving this type of scenarios or examples in 1 hour and 15 minutes, it's like very, very less time, but still maybe we will take some scenarios and I'll try to give some examples, and questions are always welcome. So if you are going to ask something, so maybe I'll be happy, glad to answer those questions also. So maybe that depends on the Sanjeev or Shreya, whether they want to take like in between the session or maybe end of the session. So friends, I'm going to share my screen and let's start our learning for this. That okay, how to use Excel as an effective audit tool. Vijayji, I would just like to say that if you are able to view the chat box or Zoom, then you can take up the question anytime. The YouTube question I will give you at the end. Yeah, that's okay. But what happens, Sanjeev, like it's not possible for me like taking care of the chats, because Understand. So maybe like if I'm listening, then maybe I can see. But in the meantime, it's like if you go through and lot of questions are there, repeated questions are there. So maybe you can interrupt me in between and you can ask question. Sure. So I would request Shreya to do so. If there are repetitive question in between, then those questions can be taken in between, but otherwise we'll take up the question at the end. Right. So I'm going to share my screen. And in the meantime, like also, I'll be speaking to either Shreya or you, so that like I come to know that, okay, everything is going fine. So don't feel that, okay, I'm every time like I'm going to disturb you or I'm going to ask some question or something. No. Because like if I'm only speaking, then I feel that, okay, I'm alone. But if something like in between वो कहते हैं ना स्टोरी सुनाते हैं, तो हाँ हूँ करते रहो, तो मेरे को लगता है कि यार सुन रहे हो आप लोग. Otherwise ऐसा लगेगा यार मैं अकेला हूँ जैसे और बाकी पता नहीं कहाँ पे क्या कर रहे हैं. So I hope Shreya, like you are able to see my screen, right? Yes. Okay. So friends, let me. So like always, like I always say that why Excel? So in 2 minutes, these are my something you can say these are the quotations are like from me that Excel is aeroplane, but most of us use it like bicycle. और bicycle यूज करें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम मोर देन हैप्पी, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है उसको बाइसिकल को भी चला नहीं रहे, उसको अपने कंधे पे उठा करके चल रहे हैं. तो ये सबसे ज्यादा पेन है. तो हमने जो है इसको एक्सेल को एटलीस्ट बाइसिकल की तरह, एटलीस्ट उसको स्कूटर की तरह, एटलीस्ट बाइक की तरह हम उसको यूज करें. आवर्स वर्क रेदर डेज वर्क कैन बी डन इन मिनट्स. डेफिनेटली बिल्कुल 100% ट्रू है. एक बार आप एक्सेल पे काम करना शुरू करिए, एक बार आप करके देखिए. और ये चीज मैं नहीं कह रहा भाई, कहने में देखने में लगता है यार ये तो बड़ा कहने की बात है, बट डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ डेज वर्क या इवन वीक्स जो वर्क है वो भी आप इसके अंदर जो है ना भाई घंटे के अंदर, मिनट्स के अंदर आप कर सकते हैं. बट थोड़ा सा एक बार इनिशियली टाइम देना होगा, एक बार आपको इसके अंदर कूदना होगा. बाद में आपको जो मजा आएगा तो रियली वो आप लाइक जो है ना बता नहीं सकते, वर्ड्स के थ्रू नहीं बता सकते, केवल आप फील ही कर पाओगे. और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने सीए में इतनी मेहनत की, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, उसकी 10%, 5% अगर आपने मेहनत कर ली तो जितना आपको रिजल्ट सीए में मिला है आपको उससे ज्यादा रिजल्ट, उससे ज्यादा रेवेन्यू आपको ये एक्सेल दे सकता है. बट उसके लिए कहीं ना कहीं जील होनी चाहिए भाई, करने की एक होनी चाहिए कि हाँ यार मेरे को नहीं, स्टार्ट तो करनी है.
तो थोड़ा सा इसके लिए आपको लिटिल एक्स्ट्रा स्मार्ट होना है। छोटी छोटी चीजें जो हम इग्नोर करते हैं, उन चीजों को हमने इग्नोर नहीं करना, उन चीजों के ऊपर हमने फोकस करना है। क्यों? ऐसे क्वेश्चन वाली जो है ना, क्वेश्चनिंग करनी है हमने। ऐसा क्यों है, ये बटन ऐसा क्यों है, ये कॉर्नर पे ये क्या बना हुआ है, इसको हम क्यों नहीं देखते, ये एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा क्यों बनाया, पिछले वर्जन में तो ये नहीं था, इस वर्जन में ये क्यों आ गया। लाइक इस टाइप की जब चीजें आप देखोगे पहले वर्जन में कंपेयर करना, ऑलवेज ट्राई टू हैव द लेटेस्ट वर्जन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो फ्रेंड्स। हम इतनी इन्वेस्टमेंट और चीजों में करते हैं, अपने भाई फोन्स के ऊपर, ड्रेस के ऊपर, मकान के ऊपर, ये हमारा जो है ब्रेड एंड बटर है। इसके ऊपर एक्सेल को भी आप कभी मत सोचो यार मेरा तो काम चल रहा है। नेवर नेवर थिंक। अपने स्टाफ को जो मशीन दो, बेस्ट मशीन दो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपना जो पार्टनर है, ओनर है, अगर उसके स्टाफ के पास ओनर से बढ़िया अगर मशीन है, उसकी जो भाई हार्ड डिस्क की जो पावर हार्ड डिस्क है वो अगर उससे ज्यादा बढ़िया है, उसकी स्पीड उससे बढ़िया है, तो वो आपको काम करके देगा। जनरली हम क्या सोचते हैं, हम तो लाख रुपए का कंप्यूटर ले लिया, काम क्या है, मेल इधर से उधर पिक्चर देखनी है उसके अंदर। जब काम करना है स्टाफ को, वो बेचारा जो है उसके बटन टूटे हुए हैं कंप्यूटर के, उसका वो जो है 3 GB रैम है, 4 GB रैम है, वो कंप्यूटर बाबा आदम के जमाने का है। तो ये सब चीजें आपने देखनी है जी। ऐसा नहीं है कि खाली मेरी ट्रेनिंग लेने से और आपको जो है अफेक्टिव हो जाएगा और वो एक्सेल बन जाएगा। तो ये स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी चीजें आपने, ये सब उसी का पार्ट है। फिर उसके बाद ऑडिट तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा टास्क है हमारा भाई सभी ऑडिटर्स के लिए। आज की डेट में ठीक है जीएसटी का भी काम कर रहे हैं, टैक्सेशन का भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब काम तभी हो रहे हैं जब आप किसी का ऑडिट कर रहे हो, तभी वो क्लाइंट आपको जो है एक साथ में ये जो अदर वर्क्स हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। तो ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, वो एक हमारा बड़ा टास्क है। और इसीलिए हम भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी आर कॉल्ड कि भाई एक लाइक लॉयर है, वो क्या है, वो केस लड़ता है जी। इसी टाइप से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फेमस कि हम ऑडिट करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इन दिस, वी आर इन दिस प्रोफेशन। बट ज्यादातर हमारा जो टाइम है वी स्पेंड इन मैनुअल थिंग। अब कहने को हम कहेंगे जी सारा काम एक्सेल पे हो रहा है, सारा काम टैली पे हो रहा है, ईआरपी पे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट जब देखो वो ऐसे फाइल के बोझ से लदे हुए हैं, पता लगा जी काम मैनुअल टाइप से काम हो रहा है। उसका प्रिंट आउट ले लेकर के, प्रिंट आउट ले लेकर के टिक मार कर रहे हैं, टिक मार कर रहे हैं। तो ऐसा अगर टिक मार करेंगे कोई उसका अफेक्टिव, उसका फायदा नहीं है जी। तो ये सब चीजें हमने मैनुअल थिंग्स को नहीं करना, उसकी जगह एनालिसिस पे हमने टाइम लगाना है कि एनालिसिस करके क्लाइंट्स के लिए कुछ वैल्यू एडिशन करें, अपनी कंपनी के लिए कुछ वैल्यू एडिशन करें, अपने बिजनेस के लिए, खुद के लिए अपने देखें कि अच्छा जी स्कोर कैसे बेटर कर सकते हैं। तो 5% तो मैं वैसे बोलता हूँ जी, मैं खुद ही समझता हूँ कि मैं 15-20% यूज करता हूँ, तो मेरे को नहीं पता ये 5% जो है कितना हम लोग यूज करते होंगे रियल पावर ऑफ एक्सेल। तो आइए इसके अंदर डीप डाइव करते हैं एक्सेल को एज ए ऑडिट टूल के हिसाब से। तो किसी भी उसमें कर सकते हैं भाई, चाहे वो ऑटोमेशन हो, चाहे वो आपका और कोई एनालिसिस हो, बट आज हम इसको करेंगे एज एन ऑडिट टूल के बेस पे। एक्सेल एज एन ऑडिट टूल, एक्सेल इज मोस्ट इजीएस्ट टूल है, सबसे यूजर फ्रेंडली टूल है। नो बिग इन्वेस्टमेंट, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं तो आज की डेट में कोई टूल आपको खरीदना है कोई अलग से, इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर आते हैं, फिर उसके लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट, फिर उसके बाद उसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब इतनी सारी उसके अंदर जो है ना चीजें इन्वॉल्व होती है। बट एक्सेल 1 मिनट के अंदर आप जो है एक्सेल नहीं है तो आप इसमें से लो, डाउनलोड लो, 5-7 हजार रुपए की साल की पेमेंट है और उसके अंदर 2-4 मशीनें आपकी चल जाएंगी, आराम से आपका हो गया, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज, इतना यूजर पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने 750 मिलियन 75 करोड़ यूजर्स इस एक्सेल को यूज कर रहे हैं, और पायरेटेड यूज कर रहे हैं वो अलग है। तो इतनी इजी है, यूजर फ्रेंडली है और सब मानते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि किसी को बताने की जरूरत, तो हाँ यार एक्सेल का है, सम का रखा है, इसका मतलब वो सम ठीक ही होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, तो उसको टेस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज दूसरा कोई टूल लोगे, पता लगा जी आप उसके लिए पहले पता कर रहे हो, फिर पता लगा जी वो इम्प्लीमेंटेशन फेलियर हो गई, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी इंडस्ट्री के लिए, वो ठीक से नहीं है। तो ऐसा नहीं है जी, केवल छोटी सी नॉलेज से हम कर सकते हैं, बट इसके लिए हमारे को प्लान करना है कि हमारे को क्या चाहिए। अगर उसको टूल की तरह, ऑडिट टूल की तरह यूज करना है तो क्या चाहिए, अगर उसको हमने प्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है तो क्या हमारे रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए हमारे को, तभी इसको हम इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। इसके अंदर जो है सबसे बड़ा जो टास्क मैं जो मानता हूं भाई ऑडिट टूल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो उसके लिए मैं ये मानता हूं कि डेटा क्लीनिंग ये एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि हमारे पास जो डेटा आता है, क्लाइंट से डेटा आया, वो हो सकता है टेक्स्ट फाइल है, वो हो सकता है हमारे पास जो है डिफरेंट लाइक कोई बड़ी फाइल आ गई हमारे पास, उसका जो डेटा है, उसका जो फॉर्मेट है वो ठीक से नहीं है। अब आजकल बैंक के जो आपके ऑडिट चल रहे थे, अब इसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स थी, जो डेटा था वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से आता था टेक्स्ट फाइल में, और इतनी ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब ये सारी चीजें जो है
अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारा डेटा क्लीनिंग अगर हमने बढ़िया से कर ली तो समझो कि हाँ बैटल वॉन। तो मेरा मानना ये है, मेरा विश्वास ये है कि आपने जो है ना काफी अपना 50% से ज्यादा काम कर लिया उस डेटा को। अगर आपने टेबुलर फॉर्म में इफेक्टिवली आपने बस क्लीनिंग कर लिया, उसके बाद कोई काम नहीं किया, जहां से डेटा मिला उसको आपने कर लिया। तो ये जो चीज है इसको हम कैसे कर सकते हैं डेटा क्लीनिंग की, वो मेरे काफी भाई मेरी उस पे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी है, संजीव जी के साथ भी मैंने प्रोग्राम किए हैं, उसमें मैंने काफी इसके ऊपर डिस्कस किया है कि कैसे हम क्लीनिंग को कर सकते हैं। तो आज केवल थ्योरेटिकल मैं बात करूंगा, हम आज केवल प्रैक्टिकल सिनेरियोज के ऊपर बात करेंगे। और एक दूसरा मेरी ये भी एक मेरा कोटेशन है कि ऑलवेज ट्राई टू डू फिशिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग फिश। कि आपने फिश नहीं लेनी, कोशिश ये नहीं करनी बस एक बार वन टाइम काम करना, मतलब उसको चीज को समझना है आपने, उसके अंदर आपने जो है ना पानी में जाके और इस हिसाब से करना है कि कहीं पर भी आपको जाना पड़े, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसको आप इजीली बढ़िया ढंग से उसको यूज कर सको, रटना नहीं है चीजों को, ये आपने थोड़ी कोशिश करनी है उसको। तो नोट भाई, नेवर टेक फिश, ऑलवेज ट्राई टू फिशिंग। अगर कोई काम कोई आपको बता रहा है तो उसको मत बोलो कि अच्छा तुम कर रहे हो, अच्छा ये कर दिया, उसको देखो अच्छा कैसे कर रहे हो, अच्छा मेरे को सिखाओ, मेरे को सिखाओ आप। तो इस टाइप से अगर आप ये करेंगे तो उसका मतलब हो गया कि आप फिशिंग करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद है एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और जो चार्ट्स हैं, 2000 वेरी वेरी इफेक्टिव टूल जो आपका ऑडिट के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, चार्ट से आपका डेटा का जो एनालिसिस है वो बड़ा इजी हो जाता है। वो कहते हैं एक पिक्चर जो होती है वो 100 टाइम्स बेटर देन वर्ड्स, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो आप भाई शब्दों में नहीं बता सकते। तो ये जो चीज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी वही चीज है और चार्ट्स भी वही चीज है कि कैसे हम डेटा को एक बढ़िया ढंग से उसको प्रेजेंट करें, बिना बोले प्रेजेंट करें, बिना बोले वो बताए कि ये डेटा कैसा है। तो ये हमारा जो है एज ए ऑडिट टूल है। कुछ कमांड्स फॉर्मूलाज जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमने पहले की है यूज, अभी हम इन कमांड्स को यूज करेंगे, जो प्रैक्टिकल केस लेंगे उसके अंदर हम इसको यूज करना चाह रहे हैं। तो एक फ्लैश फिल की मैं बात करता हूँ हमेशा, ये बहुत ही बढ़िया शानदार टूल है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं संजीव जी की जो हमारी पहले दुबई के लिए इन्होंने प्रोग्राम करवाया था उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, फ्लैश फिल के बारे में। एक NIRC की वेबिनार हुई, उसकी सब रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो अभी इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला फ्लैश फिल को, लेकिन आपने इसको आना चाहिए। अब अगर आपको ये फ्लैश फिल नहीं आता, इसका मतलब आप पहले इसको सीखो, उसके बाद आप ऑडिट टूल की बात करना। क्योंकि ऑडिट टूल का मतलब क्या है, यही चीजें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही चीजें मिल करके वो डिस्क बननी है, और उस डिस्क को हम कह देंगे कि ये ऑडिट टूल के लिए हमारा काम करेगा। ये फ्लैश फिल आपने यूज करना है, इससे क्या होगा, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, वो मशीन लर्निंग वो जो है एक्सेल आपका, लेकिन इसके लिए वर्जन जो है एक्सेल कौन सा यूज कर रहा है जी, ये जो है 2013 वर्जन, 2013 वर्जन जो है उसमें ये स्टार्ट हुआ था फ्लैश फिल। अब अगर किसी के पास पुराना वर्जन है तो ऑब्वियसली फिर उनका इतना मजा नहीं आएगा, डाटा की क्लीनिंग करने में उनको बड़ा टाइम लगेगा। तो ऑलवेज ट्राई टू हैव द लेटेस्ट वर्जन। एक ये बड़ी अच्छी कमांड है गो टू कमांड, F5। तो F5 ये गो टू कमांड है कि अपने डाटा को, डिफरेंट डिफरेंट डाटा है, कहीं पे एरर आ रखी है आपके डाटा में, कहीं पे आपके डाटा के अंदर जो है पता लगा उसके अंदर ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, कहीं पे कोई लाइक जो है ब्लैंक पड़ा हुआ है, तो इस टाइप का, कहीं पे नंबर्स देखने में नंबर्स हैं पर लेकिन वो नंबर्स है ही नहीं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो मेरी गो टू कमांड है F5, ये बहुत ही बढ़िया कमांड है। इसकी एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+G, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। फिर फिल्टर आप लोग यूज करते हो, और उस फिल्टर को थोड़ा और सीखो आप। एडवांस फिल्टर जो है कमांड है, एडवांस फिल्टर बहुत ही इफेक्टिव है। देखते हैं आज कुछ एग्जांपल्स के अंदर, आई ट्राई टू यूज दिस एडवांस फिल्टर आल्सो। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसकी फ्री वीडियोज, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई पेड मेरी वेबसाइट पे जाके, पेड भी है कुछ कोर्सेज अगर है उसमें और डिटेल में है, बट ज्यादातर इन सभी चीजों के ऊपर फ्री वीडियोज यूट्यूब के ऊपर ना मेरे केवल मेरे चैनल पे नहीं है, हजारों और दूसरे चैनल पे भी भरी पड़ी है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं ये जो पर्टिकुलर चीजें जो आपको बता रहा हूँ इसको आपने जरूर सीखना चाहिए, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट 60 इयर्स का हो, चाहे वो भाई आज ही उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की हो। एवरीबडी शुड हैव दीज टाइप ऑफ लाइक, दीज आर समथिंग लाइक वेरी बेसिक, वेरी वेरी लाइक थिंग्स व्हिच एवरीबडी शुड नो। फिर उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मूलाज, एक टेक्स्ट फॉर्मूलाज है, फॉर्मूले तो इसके अंदर हजारों हैं, अब सारे फॉर्मूले नहीं सीख सकते, लेकिन जो टेक्स्ट फॉर्मूलाज है वो काफी इफेक्टिव है जी। टेक्स्ट फॉर्मूलाज में आपका मिड का आ गया, लेफ्ट का आ गया, राइट का आ गया, लेन का आ गया, इस टाइप की जो चीजें हैं आपके, ट्रिम का आ गया। अब नए फॉर्मूले आ गए, कॉनकैट का एक नया फॉर्मूला आ गया, टेक्स्ट ज्वाइन का नया फॉर्मूला आ गया, बड़े इफेक्टिव फॉर्मूले आ गए। तो ये हमारे को फॉर्मूले पता होने चाहिए, सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर ये कुछ फॉर्मूले हैं जो सबको पता होने चाहिए, इफ का है, वी लुकअप का है, इफ एरर है, डेट के फॉर्मूलाज हैं,
वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत ही सिंपल फॉर्मूलेज है। एक ये समिप्स का फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ माय फेवरेट फॉर्मूला। ये भी प्लीज फ्रेंड्स आप लोग जो है इसको भी सीखिए। और एक पिवट जो है स्लाइसर्स डैशबोर्ड, ये तो इसका सबसे बेस्ट टूल मैं कह सकता हूँ कि एक्सेल का है, जिसमें पिवट यूज होती है, जिसके अंदर हमारी जो है स्लाइसर्स यूज होते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं। तो ये चीज भी आपने फ्रेंड्स जरूर से यूज करनी है। तो ये सारी चीजें हमने यूज करके और फिर हमने उसके बाद केस लेना है जी। अब ये चलते हैं जी हम आगे कि कैसे इसको यूज करेंगे जी। अब ये मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज बना रखे हैं जी मैंने। एक मेरे पास ये सारे मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि कैसे एज ए ऑडिट टूल के हिसाब से मैं इसको यूज करने वाला हूं आज। राइट जी, क्वेश्चन आर वेलकम। और अगर मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, ये जो डाटा है मेरे पास, ये तो ऐसे मैंने कोई डमी डाटा ले रखा है। अगर आप रियल डाटा मेरे साथ शेयर करो, तो आप अगर भाई बताओ उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लो, आप सैंपल डाटा क्लाइंट्स का नहीं, उसके ऊपर जब आप एनालिसिस करोगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, आपको लगेगा अरे यार वाह, ये चीज तो यार हमने सोच ही नहीं सकते थे। तो ये चीजें हमने करनी है। तो मैं ये थोड़ा घोस्ट वेंडर्स, अब नाम से आपको सुनेगा घोस्ट वेंडर्स, मतलब घोस्ट क्या, ये भूतिया, मतलब ऐसे क्या। तो ये जो बात हम करते हैं कि अच्छा यार कोई वेंडर्स है हमारे, पता लगा जी वो जैसे होता है ना, पहले एमसीडी में पीछे आया था कि अच्छा जी वो सैलरी ले रहे हैं और वो बंदे है ही नहीं। जैसे वो आधार के साथ जोड़ा उसको, पता लगा जी वो बंदे जो ना हजारों बंदे गायब हो गए। तो ऐसे ही हमारे को ये देखना है कि अच्छा जी कोई कंपनी के अंदर कैसे कोई घोस्ट वेंडर्स तो नहीं है, कि पता लगा जी वहां पे केवल बिलिंग हो रही है और वो जो एक्चुअल में वेंडर्स का काम ही नहीं कर रहे। एजिंग एनालिसिस, एजिंग को एनालिसिस करके हमने कुछ भाई डिसीजन लेना। भाई पर्पज क्या है हमारा, जो एज ए ऑडिट टूल का मतलब क्या है कि हमारे पास 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा लगाया डाटा के ऊपर और हमारे पास 10 तरह के एरियाज निकल के आ गए। यार यहाँ पे हमारे को कुछ पॉसिबिलिटीज लग रही है, यहाँ पे हमारे को लगता है कि जो एक ऑडिट का मेरा एक चांस बन रहा है कि ये मेरा जो है जरूर मेरे को ऑडिट करना चाहिए, ये वाला मैं इसको छोड़ सकता हूँ जी। इसको मैं तो 100% करना है मेरे को, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। ये मेरे को अनयूजुअल नंबर लग रहे हैं, ये मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को फ्रॉड वाला केस लग रहा है। तो इस टाइप की चीजें आपको, जब आप डेटा को किया शुरू में 1 घंटा 2 घंटा आपने लगाया और फिर आपके पास वो अलग अलग एरियाज निकल करके आ गए, फिर आपने देखना है कि यार इस पे मैंने आर्टिकल को लगाना है, इस पे मैंने जो है ये पता लगा कि किसी पेड स्टाफ को लगाना है, इसमें मेरे को पार्टनर का काम है, इसमें मेरे को आउटसाइडर एजेंसी का मेरे को जो है भाई उसकी हेल्प लेनी है, कि मेरे को हो सकता है कोई बंदा है और उसकी कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है एक्सपर्टाइज है, तो उसकी हमने किसी हेल्प लेनी है कोई इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। फिर एजिंग एनालिसिस से भी यही मैंने बताया। और एक परचेज एनालिसिस, परचेज एक बड़ा एरिया है जिसके अंदर काफी कुछ लाइक चांसेस है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा ये नहीं कहता कि आपने हमेशा जैसे होता है ना कि हॉन्टेड वो डॉग्स वाली कोई वो रखनी है कि नहीं यार इसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। लेकिन एज एन ऑडिटर आपका जो ड्यूटी यही है कि आपने हर एक चीज को क्रिटिकली आपने देखना है जी, आपने उसको देखना है। तो उसको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं परचेज को, क्योंकि परचेज जो है उसमें ज्यादा चांसेस है, सेल्स के अंदर में भी आपके जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल मिल जाएंगे आपके, वो कंपनी बेस्ड है। लेकिन परचेज में बाहर के ये लोग हैं, उसके अंदर कोई सामान आया ही नहीं आपके पास, हो सकता है उसे प्राइसिंग की कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज भी हमने देखनी है। तो इसके ऊपर मेरे पास अब मैं प्रैक्टिकली मैं एक्सेल खोल रहा हूँ और उसके बाद हम एक एक चीज के ऊपर हम चलेंगे। संजीव जी ठीक चल रहे हैं भाई, जो चीज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेकिंग सेंस? बिल्कुल। हाँ जी श्रेया जी। हाँ जी सर, इट्स गोइंग वेरी स्मूथली। हाँ नहीं ठीक है, तो मैं बस यही थोड़ा सा कि अगर लगे आपको कि मैं स्पीड ज्यादा है, लाइक इफ समथिंग वी आर गोइंग वेरी फास्ट, या लाइक आउट ऑफ लाइक जो हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा अलग हटके जा रहे हैं, तो प्लीज लाइक टेल मी। ऐसा श्योर कुछ भी श्योर। 1% भी कि हमने कोई मेरे को अलग से तैयारी करनी होगी, किसी भी चीज के ऊपर मैं 2 घंटे भी लगा सकता हूँ और किसी चीज को मैं 5 मिनट में 10 मिनट में भी वाइंड अप कर सकता हूँ। नहीं ठीक है सर, हम एक बारी बीच बीच में पार्टिसिपेंट्स के रिव्यूज देख लेंगे, अगर कुछ हाँ हाँ लगेगा तो हम उस अकॉर्डिंग मैनेज कर हाँ लेंगे। हाँ, बीच में अगर पार्टिसिपेंट जो भी है हमारे, तो वो Right. प्लीज अपने यूट्यूब पे अगर देख रहे हो या वैसे देख रहे हो, तो प्लीज वो लोग जो है आराम से अपने जो भी व्यूज हैं वो आप दे सकते हो। तो Yes, क्योंकि sir. ये जो है आपके लिए है, ये मेरे लिए मतलब ये नहीं है, तो जो आपको अच्छा Yes. लगेगा तो हम तो उसकी बात करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल कुछ सर। भी नहीं है मेरे को कि मेरे को जो बात करनी है यार यही चीज हमने करनी है, आप बोलोगे नहीं यार इसको छोड़ो, यार हमारे को तो जो है ना बस ये वी नहीं लुकअप सिखा दो, तो कोई नहीं, हमने वी लुकअप कर लेंगे। हमने कौन सा किसी से परमिशन, भाई संजीव जी बैठे हैं, श्रेया जी बैठी हैं और आप लोग बैठे हो, जो आप बोल दोगे वही हम कर लेंगे। नहीं सर, अभी पार्टिसिपेंट्स भी बोल रहे हैं बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, जो आप करवा रहे हैं दे आर वांट टू लर्न दैट सेम थिंग। राइट राइट जी। तो अब देखिए जी
इसके अंदर जो हम ये बात कर रहे हैं कि ये घोस्ट वेंडर्स का जो मैं ये बता रहा हूँ कि एज ए ऑडिट टूल। अब मैं आज जो है ना छोटी छोटी चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है फ्रेंड्स, अब इसमें ये मत बोलना अच्छा यार ये चीज कैसे है, ये हमारे को नहीं आती, वो नहीं आती, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा लेकिन डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये वाली जो चीजें हैं, फ्लैश फिल है, गो टू कमांड है, फिल्टर है, टेक्स्ट फॉर्मूलाज है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके एक्सपर्ट हो, बट एक आपको एक बेसिक जो नॉलेज है इन सारी चीजों की आपने कहीं ना कहीं यूज कर रखा है, थोड़ा बहुत आपने यूज कर रखा है। अगर ये यूज नहीं कर रखा है तो फिर देखो जी आपको पहले जो है इन चीजों को सीखना पड़ेगा, इस पे आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट जी। और इसके लिए मैंने आपको बताया मेरी यूट्यूब चैनल है और मेरी वेबसाइट पे भी इन सबके कोर्स भी पड़े हुए हैं, जैसे एडवांस फिल्टर का एक 2.5 घंटे का कोर्स है, टेक्स्ट फॉर्मूला का है, वीलुकअप का है, तो उसके ऊपर आप चीजों को देख सकते हैं, कोई छोटी छोटी चीजें। तो ये देखिए जी मैं अपनी फाइल जो है आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसे ये घोस्ट वेंडर वाली जो चीज है कैसे हम इसकी बात कर रहे हैं जी। ये मेरे पास कुछ डाटा है जी, नेट वगैरह से या किसी से मैंने डाटा ये अरेंज कर रखा है, कोई ऐसा नहीं है, जिसका भी है उसके लिए थैंक यू, जिसने भी जहां से भी ये लिया गया है। तो ये वाला जो डाटा है फ्रेंड्स, इसके अंदर मेरे पास कुछ वेंडर्स का एक मास्टर बना हुआ है। अब आप इसको देखिए, स्टोरी मतलब आप देखिए कैसे वो स्टोरी बनती है, कैसे हमारा जो है ना ऑडिट का ये काम स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक वेंडर मास्टर है जिसमें सप्लायर का नाम है जी, इसके बाद ये एड्रेस है जी, ये सिटी है जी, कोई भी सिटी है, अब इसमें इंग्लिश सिटी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेट कोड है, जिप कोड है जो हम जैसे अपने यहाँ पे पिन कोड बोलते हैं, ये कंट्री है हमारा, मोबाइल नंबर है जी उसके अंदर, और मोबाइल नंबर के बाद मेरे पास वेंडर की आईडी है जी, और वेंडर की आईडी के बाद ये मेरे पास वेंडर की आईडी, क्योंकि वेंडर कोड एक यूनिक होता है, एसएपी का कोड होता है, आपने देखा होगा। अब संजीव अग्रवाल जी अब ये ईवाई में काम करते हैं जी, अब पता लगा जी वहां पे संजीव के नाम से, संजीव सिंगल के नाम से, अब वहां पे 10 लोग हैं, तो अब अगर संजीव सिंगल का अगर कोई एम्प्लॉय कोड नहीं होगा, यूनिकनेस नहीं होगी, तो फिर तो पता लगा जी संजीव की सैलरी और किसी जो है एग्जीक्यूटिव कोई जूनियर संजीव के अकाउंट में चली जाए, वो बंदा तो देख करके पागल हो जाएगा। और जो ये अपनी वाली ये संजीव जी है, इनका ये सोचते सोचते एकदम हार्ट जो है ना, पता लगा बीपी कम ज्यादा हो जाएगा, अरे यार क्या हो गया। तो ये जो चीज है, तो इसलिए हमारे को एक वेंडर कोड दिया जाता है, वेंडर आईडी दी जाती है। अब दूसरी जगह पे आप देखिए एक एम्प्लॉय का मास्टर है जी, यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय के नाम है कि कंपनी के अंदर कौन कौन काम कर रहे हैं जी, उसका एड्रेस क्या है, उसका सिटी क्या है, जिप कोड क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये यहाँ पे दे रखा है। अब हमारे को एक छोटा सा एक चेक लगाना है, चेक लगाना है मतलब एक ये ऑडिट, भाई कैसे, मैं एक्सेल की मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे हम इसको एज ए ऑडिट टूल यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है भाई कोई छोटी कंपनी हो जिसमें हो ही भाई 10 वेंडर हैं, 4 एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय, तो वहां पे इसका यूज ही नहीं होना जी, वहां पे तो एक्सेल का भी मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं, आप वैसे ही कर लोगे चेकिंग तो भी ठीक है जी, उसमें तो अल्टीमेटली इतनी छोटी कंपनी होगी तो वो पार्टनर नहीं, उसने ओनर ने आपको बोलना है अरे यार इतना प्रॉफिट दिखा दो, अरे यार इतना दिखा दो, वो कर दो, क्योंकि सारा कुछ उसके हाथ में होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जहाँ पे सैकड़ों वेंडर हैं, हजारों वेंडर्स हैं और वहां पे एम्प्लॉइज है, वहां पे मेरे को देखना है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा चल तो नहीं रहा उसके अंदर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा एक माइंड में आता है, यार कोई एम्प्लॉय जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सप्लायर भी बना हुआ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब वो सप्लायर बना हुआ है जैसे, तो ऑब्वियसली बात ये नहीं कि वो सप्लायर नहीं हो सकता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसका मतलब कि वो फ्रॉड है या उसमें ये लीगली नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, कोई ना कोई वो कर सकता है। लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं उसका एक क्लू है, एक चांसेस है कि अगर वो एम्प्लॉय भी अगर वेंडर है कंपनी का, तो देर में भी कुछ बैड प्रैक्टिस हो सकती है, देर में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कोई कॉस्टिंग के ऊपर, देर में भी कुछ उसके अंदर कोई फेक इनवॉइसिंग हो सकते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर चांसेस है। वो चांसेस हमने बस अपना डाउट्स को रिमूव करना है, ये नहीं है कि हमने इसमें मिल गया और हमने पता लगा जी उस एम्प्लॉय को जो है उल्टा सीधा बोल के और उसको जो है कंपनी से बाहर करना है, 1% भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना ये चीज। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या चीज है कि उसको क्या करें, हो सकता है वो सप्लायर का नाम जो है उसने कोई अलग रखा हुआ, बट क्या होता है आजकल आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह है हो रहा है, तो उसने मोबाइल नंबर हो सकता है सेम रखा हो या कोई पुराना चल रहा है और उस मोबाइल के ऊपर ही उसकी चीज हो। अब यहाँ पे मेरे पास मोबाइल नंबर दे रखे हैं जी ये सप्लायर के अंदर, राइट, और यहाँ पे एम्प्लॉइज के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, ये जिप कोड है, यहाँ पे भी मेरे पास मोबाइल नंबर है जी, राइट जी। अब मेरे को ये देखना है, एक छोटा सा मैंने चेक लगाना है, आई वॉन्ट टू सी कि जो भी मेरे इधर ये जो वेंडर कोड बने हुए हैं इसका जो मोबाइल नंबर है और जो ये एम्प्लॉइज है उसका जो मोबाइल नंबर है,
क्या कहीं पे आपस में मैचिंग हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट श्रेया जी? आप ये बन रहा है हमारा इसका Yes, sir. सेंस बन रही है जो हम ये बात Yes, कर रहे yes. हैं? जैसे बिल्कुल लाइक सर. भाई एज ए ऑडिटर्स अगर हम बात करते हैं तो ये चीज ये हो गई। अब इसके अंदर अब चीजें आ गई। अब ये देखिए ये जो डेटा आया, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। अब चीजें आपके माइंड में तो आ गई, ये चीज ठीक है। अब जब यहाँ पे आपने सोचा ये है 707-778-0306, यहाँ पे फोन नंबर के बीच में डैश डैश लगा हुआ है। जब हम यहाँ पे गए एम्प्लॉइज के अंदर, यहाँ पे फोन नंबर के अंदर डैश डैश नहीं लगा हुआ है। डिफरेंस आ गया जी उसके अंदर, राइट? तो ये जो डिफरेंस आ गया मेरे को, अब अगर मैं इसके अंदर लुकअप लगाऊंगा, एक तरीका तो ये है जो ट्रेडिशनल तरीका हो गया कि चलो जी ये नंबर इसको याद किया 707-778-0306 और यहाँ पे जाकर के इसको पूरे के अंदर जाकर के चलो फाइंड एंड रिप्लेस आ गया आपने और 707-778-73-76 जो भी आपका आया और इसमें आपने ढूंढना शुरू किया, पता लगा। अब इसमें हो सकता है लिखने में गलती हो जाए, बट आप एक ही नंबर ढूंढोगे या दो ढूंढोगे? अगर आपके ऐसे 1000 होंगे 500 होंगे, कैसे ढूंढोगे जी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको ये लगता है नहीं यार इसमें ढूंढ तो ले, लेकिन इसमें सुना तो है कोई वी लुकअप का फॉर्मूला होता है जिसको इधर से उधर लगाने से और वो फॉर्मूला लग जाता है। चलो यार आपने किसी तरह पूछ लिया वी लुकअप, लेकिन वी लुकअप की भी जो कंडीशन है, उसकी जो मेन कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है जी? ये चीज और ये चीज बिल्कुल दोनों सेम होनी चाहिए, बिल्कुल ना कोई स्पेस होना चाहिए ना कोई डैश होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर सेम होगी तो ही वो वी लुकअप काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं काम करेगा, राइट जी? अब अगर इसके अंदर मैं ये वाला जो चीज है, ये अगर सपोज करो यहाँ पे मैं भाई ये वाला जो नंबर है, जैसे अब अगर इस नंबर को मैंने यहाँ पे रख दिया और इसके अंदर से मैंने ये डैश हटा दिए जी, वहां पे तो डैश हटे हुए हैं कुछ, ये मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है। अब एक्सेल के लिए तो ये और ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब अगर मैं इसको और इसको दोनों को इक्वल टू करूंगा, ये दोनों फॉल्स आ गए, लेकिन मेरा काम तभी चलेगा, तभी मेरे को पता लगेगा कि दोनों में कुछ है कि नहीं है, कि ये वाले दोनों चीजें मेरी एक्चुअल है या नहीं है, ये मेरी सेम है या नहीं है। तो अब उसके लिए जो मैंने आपको अभी बताए थे, जो पीपीटी की हम बात कर रहे थे, इस पीपीटी के अंदर मैंने बात की थी ना कि अच्छा जी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरा जो डेटा जो है उसको क्लीन करना है मेरे को। अब ये डेटा क्लीनिंग में अब अगर आपके पास फ्लैश फिल है, तो ये जो प्रॉब्लम थी आपकी, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें चाहे 1 लाख वेंडर हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, आपको 1 सेकंड नहीं लगना जी। 1 सेकंड से भी ज्यादा का ये काम नहीं है। ये मोबाइल नंबर आपने फिर से यहाँ पे डाल दिया कि मोबाइल नंबर न्यू। क्या करना है जी? फ्लैश फिल जादू है, मैजिक है। वो मैजिक क्या करेगा? आपने इसको बिना कोई फॉर्मूला लिखे, बिना कोई नॉलेज लगाए, मशीन लर्निंग जो बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसके अंदर ये डाल दो 707-778 और 0306। आप इसको एक एग्जांपल दे दो कि भैया मेरा जो ये डाटा ये ना होके ये डाटा है जी। आपने एक इसको एग्जांपल दे दिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या चीज बन रही है, ये कहाँ पे है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। डिटेल में नहीं जा रहा जी मैं, लेकिन फ्लैश फिल आपने जरूर सीखना है अगर आपने इसको एज ए ऑडिट टूल यूज करना है तो। यहाँ पे डेटा पे गए और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में यहाँ पे फ्लैश फिल है। इसकी शॉर्टकट की मैंने रटा रखी है। जो भी मेरे साथ अटेंड करते हैं, मेरा कोर्स अटेंड करते हैं, मेरा एक बेसिक टू एडवांस कोर्स है, 10 दिन का भी कोर्स हुआ था, बहुत ही शानदार, अब भी वो वेबसाइट पे है मेरे। कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट है, ये मैं रटा देता हूँ जी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कंट्रोल ई जो है पता नहीं कितने आपके जो है हजारों रुपए आपके बचाएगा। अब यहाँ पे आप गए और कहीं पर भी जाकर के कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आपने कंट्रोल ई प्रेस किया तो देखिए फ्रेंड्स, इसने जो ये काम था आपका, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी हेल्प के, और इसने 1 सेकंड नहीं लगाई होगी। आप देख रहे हो, आप बताओ कि मैंने इसमें कोई टाइम लगाया हो तो किसी तरह का। जहां पे ये 0 थे वो तो 0 ही आ गया इसके अंदर, बाकी इसने पूरे के पूरे जितने भी नंबर थे सारे ठीक हो गए। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है जी, ये तो इससे बढ़िया, इससे तो यार क्या चीज है। लेकिन अब वो जो भाई है, जो मेरे भाई सीए जो भाई चार्टर्ड भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जिनके पास तो 2007 है जी, 2010 है, अब उनको भाई मन में ऐसा लग रहा है अरे यार ये तो 5,000 रुपये लग जाएंगे मेरे, यार मेरे को तो 10,000 रुपये लग जाएंगे। अब यार मैं क्या करूंगा? नहीं यार विजय जी कुछ ऐसा करो ना यार, वो 5,000 रुपये नहीं लगे मेरे, मेरा इसी में काम चल जाएगा यार, इसमें चला दो। तो मैं तो देखो चला दूंगा, अभी तो चला दूंगा, फिर मेरे से कोई पूछोगे फिर भी चला दूंगा। लेकिन अगर वाकई आपने सोचना है कि आप चाहते हो कि ये काम बार बार आपको चलाने की जरूरत ना पड़े, तब तो आप उसको ले लेना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ठीक है इसको मैं दूसरे तरीके से भी करूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं,
कि यहाँ पे जो चीज है, ये जो मेरा डैश है, इस डैश को मेरे को हटाना है, तो मैं इस डैश को हटा भी सकता हूँ। कैसे हटा सकता हूँ इस डैश को? इसके मैंने बताया ना टेक्स्ट फॉर्मूला, अब फिर मैं वहां पे लेके जाऊंगा आपको कि मैं तो सोचा कि जो इजी चीज है उसके बेस पे आप कर लो। अब आप कह रहे हो कि नहीं यार, मेरे को तो जो है ना फ्लैश फिल तो है नहीं, 7 और 10 पे चलना है। तो ठीक है भाई, अगर 7 और 10 पे चलना है तो टेक्स्ट फॉर्मूलाज पे चलो। टेक्स्ट फॉर्मूलाज में क्या है? लेफ्ट का फॉर्मूला है, मिड का फॉर्मूला है। कहाँ पे है जी? चलो जी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको नहीं पता तो देखिए जी, ये फॉर्मूलाज के अंदर यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली है। अब इसके अंदर जब आपने पैसे नहीं खर्च करने तो भाई कुछ ना कुछ दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा ना, एक चीज तो खर्च करोगे यहाँ पे। अब इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मूलाज में जब यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बताया ये है। अब आपको पता भी होना चाहिए यार, मेरे को नमक डालना है उसके अंदर खाना बनाते हुए, और चाय बनाते हुए मेरे को चीनी डालनी है, और पता लगा जी उल्टा हो गया तो बस डांट पड़ गई, वो अलग हो गया, सारा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब फॉर्मूला एक इसके अंदर है कि ये डैश को मेरे को हटाना है। तो एक तरीका तो यह है कि वन टाइम अगर आपको हटाना है तो इसमें क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी किया, मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एच किया आपने या फाइंड किया, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो इसको। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे गए डैश लगाया और यहाँ पे खाली छोड़ दिया इसको, और खाली छोड़ने के बाद आपने बोल दिया रिप्लेस ऑल। जैसे रिप्लेस ऑल किया इसने उस कॉलम के बेस पे और ये रिप्लेसमेंट कर दी। तो ये और ये जो रिजल्ट था आपका, दोनों रिजल्ट्स ये हो गए। लेकिन फ्रेंड्स, फ्लैश फिल हो या ये हो, इसका एक जो है ना डिसएडवांटेज है। आप में से कोई बता सकता है? श्रेया जी आप पूछिए या आप बताइए, ये जो चीज है जो मैंने अभी ये फाइंड रिप्लेस किया या मैंने फ्लैश फिल किया, इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? जो कि मेरा फॉर्मूले का डिसएडवांटेज नहीं है, वो आप में से बता सकता है कोई? या कोई मेरे डेटा टाइप चेंज हो सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी है नंबर टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू नंबर कुछ हो जाए। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा इसमें। ये देखिए इसने सही रिजल्ट दिया, लेकिन इसका एक जो है ना कहीं डिसएडवांटेज है। तो वो क्या डिसएडवांटेज है? कोई आप में से देखो, आप उस पे चैट बॉक्स पे डेफिनेटली बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं, स्मार्ट फ्रेंड्स हैं, वो डेफिनेटली कोई जवाब देंगे। Sir, इसमें Vandana Gambhir is saying it will not work when change is made. when Changes are made, मतलब अगर कुछ चेंज होता है उस रो में, ओरिजिनल रो में, हाँ तो हाँ अपडेट नहीं होगा। बिल्कुल। ये देखिए वंदना जी जो है भाई, रियली आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, हर चीज इतना बढ़िया उसने 1 सेकंड में जवाब दिया। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अब ये चीज अगर आपको दिमाग में आ गई ना, इस टाइप की चीज पता लग गई, तो आपको पता होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ तो ये मेरे को ये करना चाहिए। अब ये वन टाइम होगा तो आप इसको आराम से करोगे, ठीक है जी। और आपको लगता है मेरा डाटा तो ये चेंज होता जाने वाला है, तो आप सोचो यार इसको वन टाइम कर दिया, बाद में ये चेंज हो गया, तब तो मेरा ये सारा बिगड़ जाएगा पूरा। तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए। तो आपको रिस्क कितना लेना है आपको पता होना चाहिए यार, मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, मेरे को ये वाला तरीका ठीक है या ये वाला तरीका ठीक है। अब एक तीसरा तरीका जो है इसके अंदर, ये मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। तो ये चीजें आपको टेक्निक जो है, जो टोडी टूल हम बात कर रहे हैं, ये तरीका मैंने क्या किया, फाइंड एंड रिप्लेस। ये तरीका मैंने क्या किया, फ्लैश फिल, राइट। और अब जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे इसका नाम है सब्स्टिट्यूट। अब ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पे गए फॉर्मूलाज के अंदर और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर गए। अब ये देखने में आपको लगेगा यार ये तो फॉर्मूले ऐसे मैं कैसे याद करूंगा। एक बार थोड़ा सा इस पे जाओगे, पढ़ोगे, जब इसके ऊपर क्या होता है, कर्सर घुमाना होता है। जब आप खाली बैठे हो, सारा दिन फेसबुक पे हम ऐसे घूमते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, देख देख करके लोगों को, और ऐसे मन में जलन होती रहती है, अरे यार वो सिंगापुर घूम रहा है, अरे यार इतने बढ़िया कपड़े, अरे यार उसकी तो मौज है। लेकिन इतना टाइम खराब कर देंगे, आना जाना कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके अंदर जब जाओगे, यहाँ पे फॉर्मूले पे कर्सर रखोगे, तो ये क्या होता है, ये आपको बताता है क्या करता है ये, कि REPT का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है। तो इसके ऊपर आप करके देखो। तो जब आपने इस पे गए तो देखिए सब्स्टिट्यूट है, ये बोल रहा है रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। देखिए कितनी प्यारी सी इसने, कितनी शॉर्ट के अंदर एक छोटी सी इसने बता दिया कि ये सब्स्टिट्यूट भाई ये काम करता है। अब अगर आपको समझ में नहीं आए, इस पे क्लिक कर लीजिए आप। अब क्लिक कर लिया इसने, और क्लिक करने के बाद ये भाई क्या पूछता है इस फॉर्मूले में, ये भाई ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट, कि जी टेक्स्ट क्या है, किसके ऊपर आपको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब किसका ऑपरेशन करना है, कौन है पेशेंट आपका, ये पेशेंट की बारी मतलब पूछ रहा है ये आपको। तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा जी ये पेशेंट जो है कौन है जी, ये मेरा पेशेंट है जी, ये वाला जो 707। अच्छा जी, इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, इस पेशेंट का जो है ना ये डैश जो है ये एक्स्ट्रा ये निकला हुआ है जी इसके अंदर। तो आपने ये डैश लगा दिया जी यहाँ पे, ये डैश मेरा एक्स्ट्रा निकला हुआ है जी।
न्यू टेक्स्ट, इस डैश की जगह क्या लगाना है जी आपको? नया टेक्स्ट क्या है? नया टेक्स्ट कुछ नहीं जी, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं इसमें, ये मेरे को खाली छोड़ दिया कि मेरे को यहाँ पे कुछ चाहिए नहीं, नया टेक्स्ट मेरा खाली पड़ा हुआ है जी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने खाली ये छोड़ दिया इसको, तो खाली छोड़ने के लिए भी इसमें डबल जैसे आपने इन्वर्टेड कोमाज लगा दिया। डबल इन्वर्टेड कोमाज का मतलब खाली है जी। और इसके बाद आपने इसको ओके बोल दिया, यहाँ पे जाकर के ओके कर दिया। तो जैसे आपने ओके बोला तो ये देखिए इसने से डैश इसमें से हटा दिए। अब इसके अंदर डैश भी हटा सकता था, जीरो भी हटा सकता था, ए भी हटा सकता था। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका डेटा है, कि वहां पे डैश है या हो सकता है कोई नंबर हो, कुछ ऐसी चीज हो, तो हो सकता है ये सब्स्टिट्यूट के लिए कुछ और ढूंढना पड़ता। अब वो अभ्यास से आपको प्रैक्टिस से आएगा। और इसको पकड़ा, एक्सेल का तो फंडा पता ही है, एक को काम किया, जैसे ही डबल क्लिक किया सारे के सारे मेरे फॉर्मूले बन गए जी, सारे के सारे ठीक हो गए जी। अब आप कहोगे ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, तीनों। लेकिन इसका फायदा ये है कि यहाँ पे जाकर के अगर मैंने नंबर चेंज किया 1 2 3 डैश 4 5 6 डैश 7 8 9 0, अब देखो जी इसके अंदर नंबर वही रह गया, इसके अंदर नंबर वही रह गया, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब आपने ये डिसाइड करना है जी मेरे लिए कौन सा इफेक्टिव है। ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। एक बार करना है डेफिनेटली आई से कि फ्लैश फिल पे जाओ, फाइंड रिप्लेस पे जाओ, राइट। तो अब आपका ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम अभी खत्म हो गई यहाँ पे। अब आप सोच रहे हो कि अच्छा यार मैं वी लुकअप लगाता हूँ, कि अच्छा यार इसके अंदर वी लुकअप लगा करके देखता हूँ कि वहां पे अब उसके लिए वी लुकअप आना चाहिए। अब मैं वी लुकअप तो सिखाने वाला हूँ नहीं यहाँ पे कि अच्छा जी मैं वी लुकअप की आपको डिटेल में मैं बात करूंगा। वी लुकअप में मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है जी। तो वो कहाँ पे है वी लुकअप का फॉर्मूला? यहाँ पे हम गए फॉर्मूलाज के अंदर और यहाँ पे लुकअप में गए, और इस लुकअप के अंदर जाकर के मैं गया वी लुकअप। इस वी लुकअप के अंदर जाकर के ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू, कि क्या है जी लुकअप वैल्यू। अब आपने लुकअप वैल्यू बोली, अच्छा ये फ्लैश फिल वाली लुकअप वैल्यू पे लगा दिया, J2 है जी मेरी लुकअप वैल्यू। टेबल एरे, टेबल एरे कौन सा है जी आपका? तो आपने यहाँ पे गए और ये एम्प्लॉइज वाली लिस्ट में चले गए और इसमें जाकर के आपने लगा दिया कि अच्छा ये जो मोबाइल नंबर है, मतलब उसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, ये एम्प्लॉय का ई कॉलम है, इसको हमने ढूंढना है। और यहाँ पे जाकर के मैंने बोल दिया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, मतलब पहला कॉलम ही, हमने तो फोन नंबर ही ढूंढ के लेके आना है। और रेंज लुकअप 0। तब ये जो चीज है 4 आर्ग्यूमेंट, इसके बारे में देखिए आप लोग प्लीज अपने आप से सीखो, अगर किसी ने नहीं आता वी लुकअप। अदरवाइज आप मेरी वीडियोज को देखो और उसके बाद या कहीं और से आप ढूंढो, ये आपने जरूर सीखना है। और इसके बाद आपने बोल दिया इसको ओके। अब यहाँ पे आपका ये आ गया एन नेम, मतलब ये है कि ये वाला जो फोन नंबर है वो उस लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है, पूरी लिस्ट में कहीं पे भी नहीं है। अब इसके बाद आपने इसको पकड़ा और इसको पकड़ करके नीचे खींच दिया। अब इसको खींचने के बाद आपने देखा कि अच्छा यार ये जो चीज है, ये देखो एक फोन नंबर मिल गया हमारे को, मिला कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखिए ये फोन नंबर था, ये आ गया, यहाँ पे ये फोन नंबर था, ये आ गया। और इस टाइप से आपने देखा कुछ हो रहा है, तो मतलब 4-5 आपके फोन नंबर यहाँ पे आपको मिल गए कि अच्छा यार यहाँ पे कुछ जो है ना ऐसे मैचिंग हो रही है जी। अब आपने एक चीज देखना जी, अब ये तो लगाया आपने फॉर्मूला फ्लैश फिल पे। अब यही फॉर्मूला अगर आप सपोज करो यार मेरा वी लुकअप पे नहीं, मेरा तो सब्स्टिट्यूट वाले पे लगाना है मेरे को, J2 की जगह आपने लगा दिया H2 के ऊपर। चीजें दोनों में सेम है श्रेया जी, दोनों में चीजें सेम है, राइट। अब इसके अंदर मैंने इस पे भी लगाया फॉर्मूला, लेकिन इस पे लगाया मैंने फॉर्मूला तो देखिए सारे के सारे एन आ गए। अब इसके अंदर काम ही नहीं किया। या मैं आपको एक दूसरा करके दिखा देता हूँ कि ये वाला जो था ये पहले वाला फॉर्मूला था मेरा, और यही फॉर्मूला मैं H2 पे लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने गया और यहाँ पे अब की बार J की जगह मैंने बोल दिया ये H2 पे। तो यहाँ पे और यहाँ पे रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे तो मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। ये किस पे लग रहा है? इसके ऊपर लग रहा है। और ये वाला किस पे लग रहा है? ये इस पे लग रहा है। दोनों तो चीजें सेम है। श्रेया जी आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों में? Yes, ये sir. देखो जी, ये देखिए ये और ये दोनों सेम ही आ रही है ना चीजें। बिल्कुल सर। और हमने कोई ऐसा भी नहीं किया, उसको हमने बोला डैश हटाए, डैश हटा दिया। इसमें भी बोला हमने डैश हटाए, डैश हटा दिया। लेकिन इसके अंदर मेरा जो है रिजल्ट आ रहा है, इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा। अब ये जो चीजें हैं इस टाइप की मिस्टेक्स आएंगी आपको। अब इस टाइप की जब मिस्टेक आएंगी हम या तो सोचेंगे इग्नोर कर देंगे, अरे यार कोई नहीं है इसमें, तो सब ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय जो है ना वो वेंडर नहीं है। क्या हुआ, आपने बहुत बड़ी एक गलती कर दी, क्योंकि आपकी लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो आपको पता ही नहीं था उसके अंदर ये चीज ऐसी है, इसमें कुछ गड़बड़ है, राइट। तो क्या गड़बड़ है हुई, क्या ये हुआ कि इसके अंदर चल रहा है इसमें नहीं चल रहा। तो जब हमने ये सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया ना जी, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया ये एज ए टेक्स्ट आया है, टेक्स्ट। और ये जो रिजल्ट है ये एज ए नंबर है।
तो अगर मैं दोनों को सम करूं, मैं अगर ये सोचो मैं इन दोनों को सम करूं, एक तो मैं इसको सम करूं दोनों को, तो देखिए नंबर दोनों का टोटल हो गया, और एक मैं इसको सम करूं, इन दोनों को जा करके ये जो सम था मेरा, इन दोनों को सम करता हूं, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। क्या समझ में आया मैम? क्या क्या समझ में आया आपको? टेक्स्ट फॉर्मेट में है वो, नंबर फॉर्मेट में उसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में है। है, वो जैसे विजय लिखा हुआ है, श्याम लिखा हुआ है, ऐसे नाम लिखा हुआ है, उसको नंबर ट्रीट ही नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, ये सारे के सारे मेरे एज ए टेक्स्ट नंबर पड़े हुए हैं, और नंबर और टेक्स्ट आपस में मैच नहीं कर रहे ना जी। जब वो मैच नहीं कर रहे तो वो VLOOKUP नहीं लग रहा है इसके अंदर। अब इसके लिए तरीका क्या है? या तो मैं इसको फिर मैनुअली करूं, तो बिल्कुल मैनुअल नहीं करना जी। इसके लिए फिर एक तरीका है जी। इसका तरीका क्या है यहाँ पे कि इसको मैनुअल ना करना पड़े और ये काम भी हो जाए इसके अंदर। तो उसका तरीका फ्रेंड्स ये है इसके अंदर कि ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर अगर इसके ऊपर लगा दें हम, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर ये है कि मैंने इसके अंदर +0 लग दिया, मतलब करंट पहुंचा दिया इसको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा, राइट। तो ये क्या करेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। या +0 की जगह मैं इसको क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दूं, तो ये क्या होगा, इसको करंट पहुंच गया उसको थोड़ा सा। जैसे होता है ना, कोई चीज अगर आपने देखा होगा, कहीं पे कोई चीज स्टार्ट करनी है, कोई लाइट, तो थोड़ा सा करंट दे दिया, तो उसके बाद पहले मेरे को ध्यान है बचपन में वो पानी चलाते थे, कुएं का पानी निकालते थे, तो थोड़ा सा पानी डाल देते थे, तो उसके बाद पता लगा जी वो पानी आना शुरू हो जाता था उसके अंदर। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हमने ये थोड़ा सा करंट दे दिया और यहाँ पे आ गया। अब ये करने के बाद हमने इसको जैसे ही डबल क्लिक किया, सब जगह करंट पहुंच गया। और करंट पहुंचने के बाद अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो ये जो चीज है ये मेरी आ गई। तो ये सारा काम था तो 2 मिनट का अगर मेरे को करना होगा, लेकिन मैंने इतना टाइम क्यों लगाया? मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था कि कैसे कैसे ये प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने लगा दिया, चलो जी इसके ऊपर ये एम्प्लॉय 1 कर दो या एक ही रख लो, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको पता है दोनों में। और इसके ऊपर आपने लगाया फिल्टर, और यहाँ पे जाकर के आपने क्या किया, इसमें ये n ने हटाया और ये कर दिया। आपके पास ये नंबर आए जी कि ये मेरे जो है 5 ऐसे वेंडर कोड हैं जिसके अंदर मेरा एम्प्लॉय के साथ फोन नंबर मैच कर रहा है। तो अब आपने क्या करना, उसका एड्रेस भी चाहोगे तो एड्रेस भी आप मैच कर सकते हो, उसका एड्रेस मैच करके देख लो जी, अच्छा वही नंबर का एड्रेस भी सेम है, तो बिल्कुल 100% हो ही गया। हो सकता है कोई गलती हो रखी हो उसके अंदर फोन नंबर लिखने में या कुछ और में, और अदरवाइज आप इसके ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन करो, आप इसको चेक करो, इन वेंडर्स के जो वोचर्स हैं उसको अफेक्टिवली देखो कि मार्केट का जो रेट है और इनका जो रेट है, वेदर 2000 आपस में कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या तो क्वालिटी बढ़िया हो तो रेट ज्यादा हो, लेकिन अगर रेट ज्यादा है और मार्केट में इसका कम है, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस जो हमारा ऑडिट रिपोर्ट में आने चाहिए कि कहीं ना कोई दाल पक रही है, कहीं ना कुछ दाल में काला है। तो ये वाली जो चीज है प्रॉब्लम है। तो ये देखिए, ये हमने एक छोटा सा एक एग्जांपल लेकर के मैंने आपको एज ए ऑडिट टूल की तरह इसको एक्सेल को यूज करके दिखाया। सेंस बन रही है जी? बिल्कुल। यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं जी। सर एज ऑफ नाउ तो कोई अभी नहीं है। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो दे कैन टाइप इन चैट बॉक्स। हमारे संजीव जी अभी बैठे हुए हैं या संजीव जी चाय वाय पी रहे हैं हमारे? कैन से। चलिए कोई बात नहीं। संजीव जी भाई अगर आवाज सुन रहे हो तो यार आप भी थोड़ा सा खाना बोल देना भाई, ठीक चल रहा है क्या? चलिए सर, आई थिंक पार्टिसिपेंट्स की अभी कोई क्वेरी नहीं है तो आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए ठीक है मैम। तो अब इसके अंदर जैसे ये आप लेके आए हो फोन नंबर, इसके अंदर फर्दर अगर आपको और आगे चीज चाहिए तो कल को आप इसके अंदर एड्रेस वगैरह भी लेके आ सकते हो। एड्रेस जब लेके आएंगे तो जो VLOOKUP लगता है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। अब ये राइट टू लेफ्ट कैसे आएगा, तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे या तो एक तरीका तो जो जुगाड़ है जो सब लोग करते हैं, इसको ले जाकर के इसके आगे पटक देते हैं कि आप इसको उठाया और इधर पटका और उसके बाद आप एड्रेस भी वहां पे ले जाओगे। लेकिन अब जो है एक नया फॉर्मूला आ गया है XLOOKUP। तो XLOOKUP में क्या है, लेफ्ट राइट का चक्कर ही खत्म हो गया। बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके इसको कर सकते हैं। तो कभी नेक्स्ट टाइम कभी टाइम होगा तो हम आपको नए फॉर्मूले सिखाएंगे, उसके ऊपर हम आपको जो है ना भाई गो थ्रू करवाएंगे कि क्या क्या नए फॉर्मूले आए हैं, कैसे इस चीज को कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने देखो जी अलग अलग चीजें देखी, फिल्टर करना भी सीख लिया आपने, आपने ये भी सीख लिया, फ्लैश फिल भी सीख लिया, सब्स्टिट्यूट भी सीख लिया आपने, इसके अंदर VLOOKUP भी आपने सीखा। तो ये सारी चीज मिलकर के एक डिश हुई। अब सेकंड सिनेरियो पे चलते हैं सर। आपका भी कोई सिनेरियो हो, कोई आपके पास कोई डेटा हो, प्रैक्टिकल अगर किसी का हो
तो डेफिनेटली आई लव टू सॉल्व उसके ऊपर। अभी नहीं, हो सकता है मैं बाद में करूं, मैं अपने यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाल सकता हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूं, बशर्ते आप वो डेटा हमारे को सबको शेयर करने की आप परमिशन दोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने वो डेटा दिया, हमने सोल्यूशन दिया और आप बोलोगे ये डेटा शेयर नहीं करना जी किसी से। उसकी बस कंडीशन यही है कि वो डेटा हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेरीज है इसी रिगार्डिंग, क्या मैं शेयर करूँ अभी या बाद में करें? नहीं नहीं प्लीज, अगर इससे रिलेटेड है तो हाँ। देखो, अगर इससे रिलेटेड है तो जरूर करिए, और कुछ तो अलग हटके है तो मैं ये चाहूंगा कि फिर हमारा एक वो बिगड़े नहीं। नहीं सर, बिल्कुल सर। वंदना गंभीर जी कह रही हैं कि बिसाइड मल्टीप्लाइंग विद 1 व्हाट इज द अल्टरनेट, जो आपने मल्टीप्लाई करा था टू चेंज इनटू नंबर फॉर्मेट, उसके अलावा और क्या अल्टरनेट है? उसके अलावा मैंने बताया +0 कर दो जी, उसके अलावा -0 कर दो जी, उसके अलावा क्या आप जो है ना बताओ उसमें, मतलब उनको कोई परेशानी लग रही है क्या? मेरे को थोड़ा सा पहले अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि अच्छा जी इसके अंदर मेरे को ये जो है ना कुछ हैवी लग रहा है या कोई इसमें मुश्किल काम लग रहा है, तो मैं उसका फिर कोई जवाब दूं। भाई अल्टरनेट का तो मतलब ये होता है ना कि कोई ना कोई, मैंने तो बताया ना फ्लैश फिल मैंने अल्टरनेट दे रखा है उनको, उसकी तो जरूरत ही नहीं है उनको, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, फॉर्मूला भी नहीं लगाना, सब्स्टिट्यूट भी नहीं सीखना। बट उनका जो डाउट है, उनके जो मन में आ रही है, भाई जब सब्स्टिट्यूट लगाएंगे वो फॉर्मूले में, उसी के सामने तो एक ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लाइड का 1 का निशान लगाना है, तो उसमें क्या उनकी लाइक जो है लाइक एप्रीहेंशन है, वो अगर वो बताए मेरे को, तो आप अगर उनको चाहो तो पैनलिस्ट बना सकते हो, और उनको अगर पूछे तो आई भाई अच्छा लगेगा, मैं उनको आंसर दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। श्योर सर, मैं एक बार उनको अनम्यूट करके पूछ सकती हूँ। जी जी कोई बात नहीं। और क्या दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे मैम आप? सर दूसरा क्वेश्चन एक है, कैन वी यूज सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला फॉर रिमूविंग डेबिट क्रेडिट फ्रॉम टैली फ्रॉम ट्रायल बैलेंस? अरे वो जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जिन्होंने पूछा है ना, जैसे वो पिछली बार अगर मेरी टैली की आप लोगों ने देखी होगी, वो क्या है, वो सारा खेल जो है ना इसने टैली वाले ने कर रखा है। वो टैली वालों ने, मैं तो उसको बदमाशी कह सकता हूँ या ये कह सकता हूँ, उसने क्या किया, जब उसका वो फॉर्मेट जब चेंज हो रहा है एक्सेल के अंदर, तो वो जो डेबिट क्रेडिट है वो उसके इंटरनल जो है ना उसके बसा हुआ है उसके अंदर, तो उसको वो देखने में नहीं आएगा, और उसको माइनस प्लस का वो चक्कर पड़ा हुआ है। इसके लिए अगर आपको ध्यान हो, पिछले बार में मैंने एक आपको डेबिट क्रेडिट का मैक्रो दिया था, आप अगर मेरी उस पे जाओगे ना वीडियो पे, वो जो संजीव जी की वीडियो थी, आपको मैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसका जो चैंप एक्सेल पे, तो वहां पे नीचे पड़ी हुई है, मैं इनको बता देता हूँ, सबको काम आएगा ये जो ये है चैंप एक्सेल यूट्यूब जो है ना, आप इसमें टाइप करोगे और वहां पे हमने जो संजीव जी की पिछली बार की जो वीडियो थी उसी के अंदर मैं बता देता हूँ, और भी कई चीजें हैं जो फ्री भी पड़ी हुई हैं, जैसे मेरा जीएसटी नंबर के बेस पे, और आप चाहते हो कि अच्छा वहां पे ये देखिए ट्रांसफॉर, ये इसके अंदर कुछ ये देखिए यूजिंग एक्सेल टू ऑटोमेट, ये मैंने संजीव जी के लिए ये की थी जो पिछली बार मैंने की थी। एक मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि आप अगर मेरा ये जो मेरा जो चैनल है इसको अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो देखिए ये मैंने लिखा हुआ है नीचे, टैली टीबी मैक्रो गेट डेबिट क्रेडिट एंड बॉटम बॉर्डर फाइल। मैम समझ में आती है आपको? यस यस सर। तो इसके अंदर देखिए ये क्लिक करना है आपने, जैसे इस लिंक को क्लिक करोगे आपके पास वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी जी, और वो डेबिट क्रेडिट का एक छोटा सा फॉर्मूला सा बन जाएगा, और आप 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में आपको डेबिट क्रेडिट अलग कर सकते हो। एक मैंने बॉटम बॉर्डर बताया था कि उसमें पेरेंट ग्रुपिंग है, चाइल्ड ग्रुपिंग है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा इसमें देखिए जीएसटी फ्रॉम पैन एंड वैलिडेशन यूटिलिटी, आप पैन नंबर से जीएसटी ढूंढना है, बिना कोई पोर्टल के ढूंढना है, आपने अप्लाई नहीं किया तो भी ढूंढना है, तो आप इसमें ढूंढ लीजिए जी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप अप्लाई करना, साल बाद करना, 2 साल बाद करना, 2 दिन बाद करना, 100% मेरा रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। पैन नंबर से आपको मैं जीएसटी नंबर अभी दे देता हूँ, 1 सेकंड में दे देता हूँ। हजारों वेंडर्स का आप चेक कर सकते हो। फिगर इन वर्ड रुपीज मैक्रो, अभी मेरे से कोई पूछ रहा था कि अच्छा यार मेरे को जो है ना ये इनवॉइसिंग के टाइम में क्या होता है, मेरे को रुपीज इन वर्ड्स डालने में बड़ी दिक्कत आती है, कई बार मैं 1000 का 100 कर जाता हूँ, वो क्लाइंट बोलता है यार ये कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको तो अपना जो है ना 100 को 1000 ये पता नहीं है, इसको मैं इसको ऑडिट क्यों करवाऊंगा, मतलब बड़ी अकॉर्ड सी पोजीशन बन जाती है। और अगर यही काम हमने एक्सेल को दे दिया तो हमारा टाइम भी बचेगा, और कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये सारी चीजें यूटिलिटी आपकी सब फ्री की यहाँ पे अवेलेबल है, आपने बस इसको क्लिक करना है, आपके पास वो फाइल आ जाएगी और उसको यूज करो। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, शॉर्टकट पेज है जो शॉर्टकट है, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे डेटा को क्लीन, जो मैं बात कर रहा था, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जो व्हाट्सएप ग्रुप को आपने ऐड वो चले गए तो हमारी जो
टिप्स हैं, हमारा जो आज मेरी एक मास्टर क्लास हो रही है डेट के ऊपर, डेट का जो फॉर्मूलाज है कि कैसे हम डेट को इफेक्टिवली यूज करें, कैसे हम डेट का इतनी बढ़िया सिनेरियोज है, लोगों को डेट के बारे में पता ही नहीं, डेट टाइम के ऊपर कैसे मेरे वर्किंग डेज है, सैटरडेज है, वीकेंड्स है, कैसे मैं हॉलीडेज है, कैसे मैं उसको करूं, मैं उसके अंदर ढूंढूं। केवल मेरे को वीक की सेल ढूंढनी है, मेरे को संडे का देखना है, कहीं पे 2 छुट्टियां हैं, एक सैटरडे छुट्टी है और एक मेरी बुधवार को छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है, मेरे को तो होता है ना मेरे को करने हैं, तो उस टाइप की सारी चीजें उसमें 2.5 घंटे की सेमिनार में खाली डेट के ऊपर मास्टर क्लास होगी, डीप डाइव होगी। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे जाकर के, और बहुत सारी इसके अंदर वीडियोज हैं जो कि आप इसमें देख सकते हो। और इसी तरह मेरा यूट्यूब ये जो वेबसाइट है उस पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे ये फॉर्मूले वगैरह आपको ये मिल जाएंगे, चीजें कि पिवट टेबल के ऊपर आपको करना है वो सारा का सारा यहाँ पे देखिए। चैंप एक्सेल जैसे यहाँ पे आपने किया, सेम ऐसे यहाँ पे चैंप एक्सेल के ऊपर जाकर के वहां पे ढूंढ सकते हो ये चैंप एक्सेल। तो यहाँ पे मेरी इसके अंदर इसमें भी फ्री बीज अगर आपने कर दिया तो फ्री बीज आपको मेल कर दी जाएगी, और यहाँ पे आपको कोर्सेज है, तो यहाँ पे आप जाकर के मास्टर क्लास कोई भी जाकर के चूज कर सकते हो और ढूंढ सकते हो जी यहाँ पे। तो इसके बारे में आप देखना और ढूंढना। ये बेसिक टू एडवांस का कोर्स बहुत ही पॉपुलर कोर्स है मेरा। चलिए जी, एक दो क्वेरीज और हैं, क्या टेकअप कर लें इसी के रिगार्डिंग? प्लीज प्लीज। मोहित इज आस्किंग, कैन वी सब्स्टिट्यूट मल्टीपल टेक्स्ट इन सिंगल फॉर्मूला? जैसे कि अभी इसमें हाइफन था बीच में, अगर एक ही टेक्स्ट में हाइफन भी आ रहा है या कोई और चीज भी आ रही है तो कैन वी सब्स्टिट्यूट मल्टीपल टेक्स्ट? हाँ, अरे मैम बिल्कुल कर सकते हैं। ये भाई ये जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं ना मैम, आप लोग देखो इतना ये कर रहे हो, मैं उनको जो है ना, मेरा अगर सेशन होता है ना मैं सबको चॉकलेट देता हूँ, किसी से पूछ लेना। तो ये संजीव जी को बोलो इतना, ये जो है ना भाई काम कर रहे हैं, तो उनको वो संजीव जी जो है ना वो पक्के जैसे होता है, वो प्रैक्टिसिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहेंगे अरे विजय जी देते तो सही हम, लेकिन यार आजकल तो आप पता है लॉकडाउन है, चॉकलेट भेजेंगे वो मेल्ट हो जाएगी। फिर मैं उनको जवाब 1 सेकंड में दूंगा, अरे भाई पेटीएम है, 50 रुपए का पेटीएम करो, 1 सेकंड में उसको चॉकलेट मिलेगी और देखो याद करेगा आपको। बिल्कुल। अब ये संजीव जी के ऊपर है भाई, वो देना चाहेंगे, और मैं तो 50 की भेजता हूँ, अब संजीव जी हो सकता है 500 की भेजे। संजीव जी के ऊपर। सर एक और क्वेरी है, इफ VLOOKUP does not provide appropriate value in case unique cell comparable value on both worksheet, can we compare more than one cell in a VLOOK jointly? मैं समझा नहीं उसमें, वो तो एग्जैक्ट मैच वो ढूंढेगा ना, अगर उसको मैच नहीं करेगा तो वो तो नहीं देगा वैल्यू। अब उसके लिए, अब अगर उसको यहाँ पे 682 है सपोज और वहां पे 681 है या यहाँ पे, तो फिर उसके बाद अगर 82 और 81 का अगर डिफरेंस होगा या स्पेस का होगा तो वो तो फिर उसके अंदर देगा ही ना, एरर देगा उसके अंदर। तो क्या करोगे आप? राइट सर। लेकिन वो उससे पहले उसका भाई का जवाब दे दूं जो उन्होंने पूछा था कि सब्स्टिट्यूट हम 2 में कर सकते हैं नहीं कर सकते, राइट? तो मैं ऐसा नहीं कि मैं भाई चाहूंगा कि ये चीज, तो बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें देखिए जी, आपने क्या है, आप इसको समझिए, क्या कंसेप्ट मैंने बताया ना, आप उसको फिश मत लीजिए, आप जो है ना फिशिंग करनी सीखिए। अब सपोज करो यहाँ पे 804 था और यहाँ पे डैश की जगह एक कोमा पड़ा हुआ था जी यहाँ पे, राइट? यहाँ पे हम गए, इसके अंदर भी एक जो है कोमा पड़ा हुआ था। अब वो भाई ये कह रहे हैं कि मेरा जो है इसके अंदर, यहाँ पे जब गया इसके अंदर, यहाँ पे जो डैश लगाया मैंने, और इस डैश के अंदर उसने जाकर के क्या क्या ढूंढा, इसको मैंने रिप्लेस किससे करना है जी, यहाँ पे गया। अच्छा ये तो इसने नंबर, ये इसकी जगह मैं ये करता हूं, डबल डॉट लगा दिया मैंने। अच्छा उसने तो वो नंबर को उसलिए कर दिया मैं इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाई 1 हो रखा था ये, तो मैंने ये मल्टीप्लाइड बाई 1 को हटा दिया। तो इसमें देखिए कोमा जो है एज इट इज लग करके आ गया, ठीक है जी, ये तो चेंज हो गए मेरे, और यहाँ पे आपका कोमा लग करके आ गया मैम, ठीक है? क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम जो थी उनकी ये है कि ये वाला जो डेटा है इसमें 2 तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ जी। 2 तरह की चीजें पड़ी हुई हैं, तो इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें, राइट? तो कल को 10 तरह की भी हो सकती है, 15 तरह की भी हो सकती है, 5 तरह की भी हो सकती है। तो अब इसमें जुगाड़ लगाना है जी। जैसे आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है तो एक सब्स्टिट्यूट करके तो ये आ गया, और यही वाला जो फॉर्मूला है, सपोज करो मैंने इसी को उठाया, कंट्रोल C किया और यही फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया। अब की बार मैं इसको जो सब्स्टिट्यूट लगाऊं इसकी जगह इसको लगा दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने डैश की जगह यहाँ पे क्या किया, कोमा लगा दिया, और इसको बोल दिया कि पहले तो वो फर्स्ट टाइम में जब करे तो किसको ढूंढे, डैश को सब्स्टिट्यूट करे, और सेकंड टाइम में किसको सब्स्टिट्यूट करे, इसको करे, और इन दोनों फॉर्मूलों को इकट्ठा करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे जैसे जो ये H38 लगा रखा है मैंने,
तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसी फॉर्मूले को उठाऊंगा और ये पैकिंग करनी बोलता हूँ जी। मैं इसको मेरी लैंग्वेज में जब मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, इसको पैकिंग कर दो जी। H38 के ऊपर ये पैकिंग कर दी। अब इसके बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। तो इसका फायदा क्या होगा, ये जैसे मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूँ, देखिए अब ये जो कॉलम है मेरे लिए, ये मेरे लिए जरूरत नहीं है। अगर मैं इस कॉलम को डिलीट भी कर दूं यहाँ से तो भी मेरा ये चलेगा। क्यों चलेगा ये? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो है ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है डैश को, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको फिर से सब्स्टिट्यूट कर रहा है कोमा के साथ में, और ये आ गया, और इसको बाद में इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दूं तो ये मेरा नंबर में भी कन्वर्ट हो गया। तो मतलब एक ही उसके अंदर जो है 2 बार मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कल को ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है, आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना, उसके अंदर कोई लेफ्ट का फॉर्मूला करना है जी, राइट का फॉर्मूला करना है जी। अब इसके अंदर कोई ऐसा भी नंबर हो सकता था कि अच्छा यार इसके आगे लिखा हुआ है R, इसके आगे लिखा हुआ है Z। अब आप चाह रहे हो कि अच्छा यार ये सब्स्टिट्यूट भी करना है, लेकिन ये R और Z को नहीं रखना हमारे, फिर वो लेफ्ट का फॉर्मूला है, राइट का फॉर्मूला है, वो चीज आप करो। तो ऐसे धीरे 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 आपने ये जर्नी भाई सीखनी है। जब आप सीखोगे तो आपको मजा आने लग जाएगा, बहुत बढ़िया से इसका काम हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो मेरा सिनेरियो है उसके आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एजिंग एनालिसिस, कि मेरे को एजिंग की एनालिसिस करनी है और उसमें देखना है जी कुछ मेरा इसके अंदर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कुछ निकल के आ रहा है कि यार। तो फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं अफेक्टिव मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग जो है इसको अपने एक्चुअल डाटा पे करके देखना और देखना कैसे इसके रिजल्ट्स आएंगे, कितना बढ़िया आपको लगेगा। जिसके अंदर आप पहले 2-2 4-4 दिन लगाते थे, वो 2-2 4-4 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट निकल करके आएंगे। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है जी। अब ये देखिए जी, इस वेंडर से हम बाहर आ गए और इसके बाद हमने यहाँ पे गए और अब की बार मैं एजिंग पे आ गया जी। अब ये डेटस की मेरी एजिंग है जी, डेटस है मतलब डेटस का डेटा है जी। अब ये देखिए मेरे पास डेटा है, कस्टमर नेम है, कस्टमर का नंबर है, इनवॉइस नंबर है, ये मेरे पास इनवॉइस की डेट है, नेट सेल्स है मेरी, और ये आउटस्टैंडिंग डेज है कि मेरी जो सेल हुई एक पर्टिकुलर डेट पे 31 दिसंबर को मेरी बैलेंस शीट फाइनलाइज हो रही है, उस डेट पे मेरी ये आउटस्टैंडिंग थी। अब इसके बेस पे अब नॉर्मली अगर आप देखोगे मैम श्रेया जी, तो आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखने से आपको कहीं पे कोई ऐसा अनयूजुअल कुछ लग रहा है क्या? अगर आप इसको पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने कर्सर को इधर से ऊपर से नीचे करते रहना, जैसे होता है ना वो जिन ऊपर से नीचे, उसने बोला कि यार एक जिन आ गया और उसने कहा लोगों को किसी के पास कि अगर आपने जो है मेरे को कोई काम नहीं दिया ना तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो आपने मेरे को काम दे के रखना है। अब वो जो भी काम दे कि अच्छा मेरे लिए मकान बना दे, आ गया जी। अच्छा यार मेरे लिए एक भाई नई बीवी लेके आ जा, ला दी उसने। अच्छा जी मेरे लिए जो है कुछ ये जो कपड़े ला दे, वो ला दिए। अब वो सारे काम खत्म कर दे। अब वो जिन जो है पता लगा जी, फिर कहे जी अब बताओ जी, बोला आप काम नहीं दोगे तो मैं खा जाऊंगा। तो उसने बोला ठीक है यार एक गड्ढा खोद, गड्ढा खोद दिया। उसने कहा कि अच्छा एक बड़ा लंबा जो है ना कुतुब मीनार जितना उसके अंदर जो है ना पोल डाल दे उसके अंदर, उसने डाल दिया। तो फिर उसके बाद बोला अब क्या करूं जी, हो गया ये भी। बोला अब जब तेरे पास काम नहीं हो ना, इस पोल के ऊपर जाना और नीचे आना, जाना और नीचे आना, तो बस ऐसे जाते रहना आते रहना, और जब काम होगा तो तेरे को मैं बुला लूंगा। तो ये वाली जो चीज है, अब इसके अंदर अब श्रेया जी जो है सुबह से लेकर शाम तक अगर इसके ऊपर ऐसे ये कर्सर को ऊपर नीचे करती रहे करती रहे करती रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूरा दिन लगी रहे, 24 घंटे लगी रहे, इसके अंदर से कोई भी चीज उनको ऐसी अनयूजुअल लग जाए तो मेरे को बोल देना, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या है इसके अंदर, चलो यार ये तो पार्टी का नाम है, ये है, ये डेट है, ये उसका बिल है, ये उसके आउटस्टैंडिंग है, बताओ जी इसमें कोई कुछ लग सकता है? मैम आपको बताओ, अगर आप ऐसे देखते रहोगे कुछ इसमें लगेगा आपको? नो सर। नो। अब इसका देखिए, अब इसको हम यूज करते हैं एक्सेल को एज ए ऑडिट टूल, ऑडिट टूल यूज करते हैं जी। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो आउटस्टैंडिंग है वो कैसी ये डेज की है, कितनी पुरानी पुरानी आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। अब वो जब आउटस्टैंडिंग आपने देखा होगा 0 to 30 डेज होते हैं ना हमारे, उसके अंदर भाई रिक्वायरमेंट होती है मोर देन 180 डेज के मेरे डेटर्स कितने हैं, कम के कितने हैं। एक हमारी रिपोर्ट होती है, मैं जो जैसे आजकल जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं कि यार वेंडर की एजिंग है जी, कोई 50 डेज पे ले रहा है, कोई 30 पे, कोई 10 डेज पे। अच्छा बताओ जी पहले क्या था, अब क्या हो गया पिछले वीक में और इसमें। तो अब इसकी एजिंग बनानी है। अब सबसे बड़ा टास्क यही आ जाता है, एजिंग। अरे सर एजिंग तो बनानी बड़ी मुश्किल काम है, कैसे करेंगे इसमें 0 to 30? वो इफ का फॉर्मूला ढूंढते हैं, इफ के फॉर्मूले से बनेगी जी। और वो इफ का फॉर्मूला, वो कहां से इफ का फॉर्मूला आ जाएगा? एक सिंगल इफ तो लगाना आता नहीं, और इसके अंदर तो हमारे 10-10 इफ लगने होंगे। इफ लेस देन 30, तो ये
इफ ग्रेटर देन 30, लेस देन 60 तो ये, इफ ये तो ये। अब उसमें पागल हो जाता है, उसको लगता है अरे छोड़ यार, इसको एक काम करते हैं, इसके अंदर जा करके वो बेचारा फिल्टर लगा करके क्या करता है, इसमें करता है अच्छा यार 30 वाले कौन से हैं, तो इसमें जा करके टिक करता है 1 2 3 4, फिर उसको करेगा, दूसरी जगह उठाएगा, फिर 30 से 60 में करेगा। इतनी देर में डाटा चेंज हो गया, नई रिपोर्ट आ गई, नया एनालिसिस आ गया। सारा दिन ऐसे करते रहते हैं, इसीलिए वो टाइम लगता है। फिर वो कहते हैं जी हमारा पेट फूल गया जी, हम तो यार कंपनी में बर्गर बहुत खिलाती है। अब खिलाएगी कंपनी तो भाई, और तो उसको कुछ मिलता नहीं। तो यहाँ पे गए आप और इसमें जाकर के आप इसकी पिवट बना लीजिए। देखिए इंसर्ट गए और पिवट टेबल पे आ गए। पिवट टेबल पे आकर के आपने इसको बोल दिया, रेंज की सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो है ना, लोग क्या करते हैं, पिवट टेबल बनाने के लिए भी इसको जा करके डाटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर ऐसे घूमते जाएंगे, पूरा एनसीआर का चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाते लगाते बीच में थकान होगी, कभी पानी पिएंगे, कभी बीवी का फोन आएगा, कभी कुछ आएगा। कुछ नहीं करना जी आपने तो बस कर्सर रखना है कहीं पे भी, और यहाँ पे जाकर के आप बोल दीजिए इंसर्ट पिवट टेबल, अपने आप से इसने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब इसको आप बोल दीजिए ओके। जैसे आपने ओके किया तो ये पूरे के पूरे आपके जो ये थे, ये यहाँ पे आ गए, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, इनवॉइस डेट, नेट सेल्स, आउटस्टैंडिंग डेज। अब आपको पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग देखनी है, तो आपने कस्टमर नेम यहाँ पे डाल दिया और आपने नेट सेल्स को यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, ये फिल्टर बेट की जगह मैंने कस्टमर नेम को डाल दिया नीचे और नेट सेल्स को डाल दिया ये। तो ये मेरे पास आ गए कि ये जो पार्टी है इसकी आउटस्टैंडिंग इतनी है, इसकी आउटस्टैंडिंग इतनी है, इसकी आउटस्टैंडिंग इतनी है। इस टाइप से मेरे पास ये डिफरेंट आउटस्टैंडिंग आ गई। अभी देखिए सैकड़ों इसमें आउटस्टैंडिंग आ गई। यहाँ तक आपको मैम कुछ लग रहा है, कोई इनफेक्टिव कोई चीज लग रही है इसके अंदर? नो सर। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको कैसे आगे ऑडिट टूल बनाए जी, कैसे इसको हम और आगे एनालिसिस करें जी, अब और देखते हैं जिसको ढूंढते हैं जिसको। अब की बार हमने क्या करना है यार, इसकी अगर एजिंग बन जाए, मेरी आउटस्टैंडिंग डेज है, अब अगर मैं आउटस्टैंडिंग डेज को भी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो है इसकी जो आउटस्टैंडिंग है पार्टी की 293 डेज की है, ये 174 की है, 14 डेज की है। लेकिन ये सेंस नहीं बन रही कि यार इसका कैसे करें। इसकी जगह अगर मैं ये करता हूं, चल यार कस्टमर नेम को तो हटाता हूं मैं यहाँ से, मैं ऐसे करूं कि अच्छा 15 दिन की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1 दिन की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 7 डेज की कितनी है, तो ये आ गई। अब ये भी सेंस नहीं बनती। अब इसके लिए तो मेरे को पूरा का पूरा एनालिसिस करना है जी, पूरा बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए अब आपको पता हो पिवट टेबल का, अगर आपको अच्छा यूज करना आता हो, पिवट टेबल जो मैंने बताया ना, पिवट टेबल हर एक चीज के ऊपर 2-2 4-4 घंटे, आधा दिन लगाओ, आप एक दिन लगाओ तो मजा आएगा कि यार पिवट टेबल क्या गजब की चीज है यार। वीलुकअप एक दिन लगाते हैं जी, क्या गजब का फॉर्मूला है। तो ऐसे आप इसमें गए तो ये मेरी अगर सेमिनार्स में आपने देखा होगा, पहले भी मैंने बताया है, इसका एक बड़ा अच्छा फीचर है। जहां भी आप फंस गए, जहां भी आप अटक गए, वहां पे आप क्या करो फ्रेंड्स, यहाँ पे जाओ और एक करना है क्या चीज। आपने मेरी, श्रेया जी आपने कोई देखी है मेरी वेबिनार पहले? नहीं सर, कुछ पार्ट देखा था लेकिन फुल फ्लेजेड वेबिनार नहीं देखा है मैंने अभी। ये देखो, ये हमारे जो ना मॉडरेटर जी हैं, और उन्होंने देखो, मैं तो सोच रहा था ये बोलने वाली है कि अरे सर आपकी तो मैंने एक भी वेबिनार नहीं छोड़ती। सर मुझे डर लग रहा था आप कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे और मुझे उसका आंसर नहीं आता होगा। चलो ठीक है। तो ये जो है ना, इसके अंदर यहाँ पे गए तो जहां भी हम फंसते हैं, मैंने एक एक्सेल के अंदर एक चीज बोल रखी है, एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, जहां भी फंसो वहीं पे राइट क्लिक करना। देयर आर मोर देन 50% चांसेस यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग वेरी अमेजिंग, वेरी इफेक्टिव, बहुत बढ़िया चीज आपको मिल जाएगी। तो अब इसके अंदर आप गए, यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। अब राइट क्लिक में आपको इतनी सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब आपको नहीं पता यार मैं कॉपी पे जाऊं, फॉर्मेट पे जाऊं, रिफ्रेश पे जाऊं, ग्रुप पे जाऊं, क्या करूं, क्या चीज काम की है। तो आप इसको सिंपल इंग्लिश जैसे होती है ऐसे पढ़ने की कोशिश करो। यार मैं कोई चीज करना चाह रहा हूँ, मेरे को 0 to 30 डेज है, यार मेरे को इकट्ठा करना है, किसी चीज को इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने के लिए कौन सी इसमें सेंस बनती है किसी चीज को? श्रेया जी आप बताइए, पार्टिसिपेंट्स के ब्याह पे इसमें क्या सेंस बनती है? मैं किसी चीज को इकट्ठा करके और करना चाह रहा हूँ 0 to 30, 30 to 60, तो कौन सा बटन मेरे लिए आपको लगता है कि जिसको इंग्लिश आती है सिंपली, तो कौन सा बटन इसके अंदर जो है ज्यादा सेंस बनता है? पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब आप नहीं बोल रहे, पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं। चलिए जी, ये बिल्कुल सही है, पार्टिसिपेंट। ये ग्रुप्स के अंदर गए तो हमने जैसे ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया जी स्टार्टिंग। ये सबसे छोटा नंबर ले लेता है, सबसे बड़ा नंबर ले लेता है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को 1 से करनी है या अप टू 360 तक करनी है। अच्छा, उसके बीच में इन बिटवीन कितना करना है?
30 इन बिटवीन करना है, 60 इन बिटवीन करना है, 90 इन बिटवीन करना है, ये मेरे ऊपर है कि उसकी मेरे को ग्रुपिंग का लेवल क्या होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 30i कर देता हूँ, 1 to 360 कर देता हूँ और ओके बोल देता हूँ। जैसे मैंने इसको ओके बोला तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इसने मेरे को ये दिखाया कि यहाँ पे 1 to 30 है, 30 1 to 60 है, 60 1 to 90 है, और इसके अंदर ये सम ऑफ नेट सेल्स आ गई मेरे पास कि यहाँ पे मेरी जो है भाई 2,21,000 की है। इसको भी अगर मेरे को करना है कि इसके अंदर देखने में थोड़ा सा इजी लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसके नंबर्स वगैरह हटा सकता हूँ। तो ये करके मेरा यहाँ पे ऐसे आ गया। अब आपका ये सारा काम मुश्किल से 2 मिनट में हुआ। ये टाइम तो मेरे को इसलिए लग रहा है कि मैं आपको ईच एंड एवरी चीज, जैसे बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के सिखा रहे हैं, ऐसे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो अगर ऐसा ऑडिट करूंगा, मैं तो ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट करता हूँ तो आते हैं तो उसके अंदर जो है चुटकियों में मैं तो उसको डाटा को ऐसे करके उसकी रेल बना करके जैसे होता है ना, बिल्कुल शताब्दी ट्रेन की तरह उसको घुमा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने किया। अब इसके अंदर जाकर के अब बताओ मैम, अब आपको कुछ सेंस बन रही है इसके अंदर, कुछ आपका कुछ ऑडिट क्वेरी बन रही है आपकी? आप पार्टिसिपेंट्स की हेल्प ले सकते हो, पूछिए उनसे कोई इसके अंदर कुछ अब क्वेरी बन रही है क्या, जो आपकी ऑडिट क्वेरी बन रही है क्या इसके अंदर? अब पार्टिसिपेंट्स अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं। हाँ हाँ सोचिए, बिल्कुल सोचिए। ओवरड्यूज, वी श्रीनिवासन जी कह रहे हैं ओवरड्यूज हैं यहाँ पे 181 to 210 एंड 271 to 300 डेज में सबसे ज्यादा सेल्स हैं। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सेल तो है, सम ऑफ नेट सेल्स, ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब सम ऑफ नेट सेल्स का मतलब आउटस्टैंडिंग है ये मेरी। आउटस्टैंडिंग, राइट। ये जो ना आउटस्टैंडिंग, इसका नाम मेरा आउटस्टैंडिंग है ये, राइट। तो वो तो मैंने वहां पे ये था। तो अब इससे क्या मतलब आपकी, और इतने सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपके सामने ऐसा कोई एनालिसिस निकल करके आ गया तो आप क्या मतलब कान खड़े होने चाहिए ना। तो क्या चीज आपकी जो है, संजीव जी अगर आगे हो तो वो तो भाई ऑडिट के मास्टर हैं, तो उनके भी कहीं ना कहीं क्या इसके अंदर ऑडिट क्वेरी हो सकती है आपकी, क्या इसके अंदर जो है ना कुछ दाल में काला कुछ लगता है या सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? क्या मेरे जो भाई लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? विजय जी, ये जो रो लेबल है ये दिस डिनोट्स द रिकवरी पैटर्न? नहीं नहीं, ये आउटस्टैंडिंग डेज है, आउटस्टैंडिंग डेज है। आउटस्टैंडिंग, ये मेरे डेटर्स के आउटस्टैंडिंग डेज है, कितने डेज की आउटस्टैंडिंग मेरी पड़ी हुई है जी। ये हाँ, मेरा जो है तो कस्टमर। अगर एक बार इस शीट पे दोबारा आए हाँ हाँ तो ये हो सकता है कि क्वार्टर एंड में सेल्स बिलिंग इन्होंने करी हो, डंपिंग भी हो सकती है, बोगस बिलिंग जैसे अभी प्रदीप गोयल जी हाँ ने हाँ लिखा, ये हाँ हाँ डंपिंग ऑफ गुड्स हो सकता है कि एक पर्टिकुलर क्वार्टर एंड पे जब परफॉर्मेंस दिखानी है तो हाँ उस हाँ टाइम गुड्स भेज दिए, उनकी ओनरशिप भी हो सकता है ये पास नहीं हुई हो, हाँ और हाँ ये एक रीजन हो सकता है। एग्जैक्टली बाकी संजीव बहुत जी। सारे रीजन हो सकते नहीं नहीं, हैं। बिल्कुल जो मेजर जो रीजन है आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और जो भाई उन्होंने भी बोला है 100%, मतलब इसके अंदर जो सेंस है वो तो अल्टीमेटली हम ऑडिट करेंगे तब पता चलेगा हमारे को। लेकिन जिसने ये जो भाई आंसर दिया है, आपने भी जो किया है, इसका मतलब यही है कि देखिए जो इसका पैटर्न जो चल रहा है, इसका जो बिहेवियर चल रहा है हमारा, वो क्या चल रहा है, 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 5 लाख। लेकिन जैसे ये 181 to 210 डेज आया, वहां पे मेरा कोई क्वार्टर एंड आया और वहां पे पता लगा जी उसने कोई फेक बिलिंग जो है उसके अंदर डाल दी, सो दैट कि मेरे को कोई स्टॉक का रिपोर्ट दिखानी है या मेरे को कहीं पे कोई और फर्दर मेरे को चीज दिखानी है। तो वहां पे क्या हुआ, ये मेरा ज्यादा आ गया, फिर उसको उन्होंने अगले महीने रिवर्स कर दिया होगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे गए 13 वाले पे, और फिर दोबारा से इसने फेक बिलिंग डाल दी यहाँ पे। तो ये जो फेक बिलिंग यहाँ पे जो डाली है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो फेक ही होगी, बट एज ए ऑडिटर यहाँ पे अब मेरी जो है ड्यूटी बन जाती है कि मेरे पास अगर ऐसा डेटा बना, ऐसा मेरा कोई एनालिसिस निकल करके आया, तो मैं वहां पे अपना कुछ स्पेशल जो है किसी को भेजूं या खुद में जाकर के उसको इन्वेस्टिगेट करूं कि अच्छा यार इसके अंदर क्या है। अब वो इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर आपको क्या करना है जी, अब इसके अंदर और भी तरीके हैं यहाँ पे कि अब इसके अंदर एक एक चीज पे जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको गए और यहाँ पे जाकर के क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके सामने क्या होगा, उसका जो है सारे के सारे इनवॉइस, वो जो पर्टिकुलर जो थी एक नई सीट में बनकर के आ जाएगी। अब इसको जब आपके बनकर के आ गए, इसको आपने क्या किया, सॉर्टिंग कर ली है। अब सॉर्टिंग करने के भी तरीके बहुत हैं। अब कई बार आदमी सॉर्टिंग करता है, वो इस पे जाएगा जी, सॉर्ट पे जाएगा, फिर इसके अंदर जाकर के इसको ढूंढेगा करेगा। तो मेरी अगर जो भाई आप लोगों ने की होगी, मैं
बहुत बोलता हूँ, ये एक एक बटन जो है ना, ये हीरे हैं सारे बटन। एक एक बटन इतने शानदार हैं जिसको हमने जो है ना डंप कर रखा है, नासा वालों को दे रखा है, इसरो वालों को दे रखा है कि यार ये तो मेरे काम के नहीं है। अब इसी के शॉर्ट के बगल में देखिए छोटा सा बच्चा, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, यहाँ पे आप गए और इसके जाकर के इस नेट सेल्स को अगर आपने सॉर्टिंग करनी है, इस पे कहीं पे भी बस बटन क्लिक करो, सॉर्ट सेलेक्ट भी अपने आप करेगा, सॉर्ट भी करेगा, बस यहाँ पे कर्सर रखो और Z to A के बटन को दबा दो। दबाते के साथ क्या हुआ, ये यहाँ पे जो है पता लगा जी ये नेट सेल्स यहाँ पे आ गई। तो आपने देखा यार यहाँ पे जो है ना सारे इनवॉइसेस जो मेरे आ रखे हैं वो तो कितने के आ रखे हैं, 37,000, 13,000, 12,000, 7,000, 5,000, 4,000। यहाँ पे एक पता लगा जी 38,90,000 का वो आ रखा है। तो आपने क्या करना है, हमने वो कहते हैं ना कि हमने मक्खन खाना है कि हमने जाकर के ऐसे बेघास खानी है। आपने देखे जी 4 पॉइंट आपने निकाले और 4 पॉइंट निकाले, उसका इन्वेस्टिगेशन करो। अरे यार ये देखो जी 38,90,000, इसका पूरा का पूरा जैसे होता है ना ऑपरेशन, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कर लो। उसके क्या इनवॉइस है, कौन पार्टी है, कैसे पेमेंट आई भी है नहीं भी आई है, बाद में रिवर्स हुआ है, स्टॉक इसमें कौन सा इन्वॉल्व हुआ, एक एक चीज जब आप देखोगे सारी चीजें आपके सामने खुलती चली जाएगी। अगर सब कुछ ठीक है, नथिंग लाइक दैट, आप अपना ऑडिट पेपर उसमें डालिए और आपका ये ऑडिट बन गई जी, एक ट्रेल हो गई, बढ़िया से बन गया। और कहीं पे भी आपको मिला तो उस रिपोर्ट को आप करिए जी, क्वालिफाई करिए और उसके ऊपर जो भी भाई एक्शन है वो लीजिए। तो ये जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें एक्सेल से, ऐसी एक चीज नहीं, पता नहीं कितनी सैकड़ों चीजें आपकी इसमें निकल करके आ सकती है। तो ये आपको तभी आएगी जब आपको पता हो कि यार पिवट टेबल का कोई फीचर है, आपको तभी आएगी जब आपको पता हो कि इसमें ग्रुपिंग का कोई फीचर है। आपको भाई माइंड तो आपका है भाई, सी आपने कर रखी है, लेकिन जब पहले आपको चीज बन के आएगी तभी तो। अदरवाइज तो आपने देखा होगा श्रेया वो सुबह से लेकर शाम तक बैठी हुई और बस ये इधर से ऊपर नीचे से ऊपर जा रही, ऊपर से नीचे जा रही, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो तो बस यही कह रही है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और लास्ट में टिक करके और संजीव जी को रिपोर्ट दे देगी, हाँ जी ये तो सब कुछ बढ़िया रहा। और वो संजीव जी ने देखो 1 मिनट पहले आए, 1 मिनट के अंदर आकर के और 1 सेकंड में उसने तो कर दिया। ये डिफरेंस होता है। विजय जी, एक्चुअली ऑडिट जो करता है ना उसका ध्यान इन्हीं चीजों पे जाता है एज एन ऑडिटर। अच्छा, आई थिंक विजय जी क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं क्योंकि 12, 15, 12, 18 हो गए हैं। तो श्रेया, हमारे श्रेया कैन यू टेक अप सम क्वेश्चंस? सर हमने फर्स्ट पार्ट का की क्वेश्चंस टेक अप कर लिए थे, उसके बाद अभी क्वेश्चंस कोई है नहीं फिलहाल। अच्छा नहीं, इस पर आए हुए हैं, मैं बताता हूँ। YouTube पे सीए उर्वेश शाह का क्वेश्चन है, सर नीड टू नो हाउ वी कैन फाइंड मल्टीपल लुकअप वैल्यूज यूजिंग वी लुकअप और एक्स लुकअप। मल्टीपल वी लुकअप वैल्यूज मतलब कोई मेरे को एक एग्जांपल तो दो ना। मल्टीपल वी लुकअप वैल्यूज बहुत पूछते हैं, लेकिन उसका कुछ मेरे को एक सिनेरियो बना के दो कि अच्छा जी ये सिनेरियो है मेरे को, तो मैं उसको मैं बता पाऊंगा। अब एक तो सम इफ का फॉर्मूला होता है जी, सम इफ कर लो आप उसकी जगह कि आपके पास अगर 4 बार वो वेंडर आ रखे हैं और आपको उसकी वैल्यू लेके आनी है, तो मैं कहूंगा वी लुकअप इज नॉट ए करेक्ट फॉर्मूला। उसके लिए आपका सम इफ है कि आप उन सबको वेंडर्स का टोटल लेके आना है आपको, तो वो सम इफ यूज करो। वी लुकअप की आप बिजनेस सिनेरियो मेरे को बनाओगे तो है, वी लुकअप का पर्पज ये है कि आपका सोर्स डेटा यूनिक है जिसके ऊपर आप ढूंढ करके लेके आ रहे हो। अगर वहां पे मल्टीपल है, रिपीटेड है, तो फिर उसके लिए जुगाड़ है। वो जुगाड़ के लिए आपको भाई देखो, अब बार बार मेरे को भी ध्यान आता है कि अच्छा जी फिर तो मेरी मास्टर क्लास में आओ जी आप, फिर तो हम वी लुकअप के ऊपर 8 घंटे की क्लास लो जी, फिर हम एक एक सिनेरियो को भाई करेंगे ना। तो इस टाइप के मेरे भाई कोर्स तो वो संजीव जी को पता है, मैंने वहां पे डाल रखे हैं मेरे, तो वहां पे जाकर के हमने 500 रुपए का कोर्स डाल रखा है, वी लुकअप की मास्टरी करो जी। उसके अंदर देखो, उसमें जितना मर्जी आप उसके अंदर सारे 15 सिनेरियो उसमें डाल रखे हैं। नहीं विजय जी थैंक यू। और एक क्वेश्चन है बालकृष्ण यादव जी का, सर हाउ कैन वी यूज वीबीए? वीबीए सर, वीबीए जो होता है ना, विजुअल जो है लैंग्वेज को बोलते हैं विजुअल बेसिक। तो जो एक्सेल जो बना हुआ है, जो इसके बैक एंड पे जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है जिसके ऊपर ये एक्सेल सारा चल रहा है, जो भी हमारी पिवट बन रही है, जो भी काम हो रहे हैं, वो सारा का सारा इसका जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बोलते हैं ना, एंड्रॉइड बोलते हैं और ये जो बोलते हैं इस टाइप की आजकल पाइथन लैंग्वेज है जैसे, तो ऐसे वीबीए एक लैंग्वेज है, वो एक्सेल के ऊपर ये पूरा का पूरा ये चलती है जी। तो प्रोग्रामिंग है वो। तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ चीजें जो एक्सेल के अंदर वैसे पॉसिबल नहीं होती, तो लोग उसकी कोडिंग करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स ने बना रखा है, ऐसे कोडिंग करते हैं। तो वो एक अपने आप में पूरा का पूरा एक अलग ही एक संसार है। और उसको हम ये सोचें कि भाई वीबीए सीख लें, तो किसी की मास्टरी किसी में होती है, किसी की तो कोई छुटपुट अगर आपको वीबीए लगाना हो तो एक इसके अंदर एक प्रोग्राम इसी में होता है कि रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम।
कि कोई काम करना है, उसका एक मैक्रो रिकॉर्ड किया और वो बैक एंड पे उसको अपनी लैंग्वेज में लिखता चला जाएगा और आप उसको यूज कर सकते हो, कोई छुटपुट काम करना हो। लेकिन अगर कोई बड़ा काम करना है आपको, कोई ज्यादा आपको करना है, तो उसके लिए पहले आपको एक लैंग्वेज इंजीनियरिंग माइंड होना चाहिए, कुछ कोडिंग में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब आप उसको सीख पाओगे। थैंक यू विजय जी। विजय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जिल शाह जी का है that how can we perform ledger scrutiny particularly in accounts having thousands of line items, जैसे हमारा सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का जो हेड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें thousands of items होते हैं, तो उसकी लेजर स्क्रूटनी करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ऑडिट पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ, आप एक्सेल पर्सपेक्टिव से बता दीजिएगा। मैं उसमें मटेरियल आइटम्स को पिक करता हूँ, जो मेरी मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड मैंने अपने ऑडिट रिस्क और कंपनी के फाइनेंशियल के हिसाब से उठाई है, उन आइटम्स को मैं पिक करता हूँ। आप एक्सेल के पर्सपेक्टिव से आप बता दीजिए कैसे लेजर स्क्रूटनी के लिए। बिल्कुल जी, मैं एक्सेल के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि कैसे जो है ना ये चीज है। तो हर एक चीज सर बड़ी इंटरेस्टिंग है, हर एक चीज जो है टाइम मांगती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज जो है उसके लिए भाई लगाना पड़ता है समय। अब उसको सीखना है, करना है, तो उसके लिए जो है अब ये मैं आपको एक जो ना एक मेरे पास एक ये बिजनेस केस बना हुआ है। अब ये नहीं है कि मैं आपको इसको मैं अभी समझा पाऊंगा या कुछ कर पाऊंगा, बट इस टाइप के बिजनेस केस, इस टाइप के एनालिसिस मैं जो है ना करता हूँ, या इस टाइप की मैं रिपोर्ट्स बनाने में लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों के प्रोजेक्ट्स में उसको करने में हेल्प करता हूँ। एक ये कुछ लाइन आ रखी है, इसको मैं एक मिनट लाइन को हटा दूं, ये क्लियर, यस। और इसको कोई लाइन डाल नहीं पाए, उसके लिए भी इसमें होता है ना कुछ कि चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूं कि किसी की रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूं। अब ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, एक्सेप्शनल रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, कि या एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, इस टाइप की सारी चीजें इसमें एक्सेल में हो सकती हैं जी, अगर आप चाहोगे तो। अब ये जो है कोई, देखिए ये कोई लाइक जो है ना एक ओनर जिसका बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है उसका, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। जो स्टडी मैंने जो इसका ये काम करके दिया था, मतलब ही वाज रियली, तो ये मैंने तो डमी डाटा लेकर के और उसका कर रखा, उसका जो एक्चुअल डाटा था उसमें बड़ा मजा आया था मेरे को करके। अब उस बंदे की क्या रिक्वायरमेंट थी जी, वो जो काम था उसका बंदे का काम था, जो फैक्ट्री जो चलाते थे, वो कह रहे जी हम ब्रेड बेचते हैं, हम जो है चिप्स के पैकेट बेचते हैं, मतलब इस टाइप की चीजें बेचते हैं जो हर वीक, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और वो दुकानदार के पास वो चीजें बिकती हैं जी, राइट। अब वहां पे जब वो चीजें डिफरेंट डिफरेंट उसके पास बिक रही हैं उसकी, तो अब वो बोला कि हमारे को क्या पता लगता है जी, साल के बाद हमने जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया और किया, तो पता लगा जी कुछ जो हमारे वेंडर्स थे, फ्यू ऑफ द वेंडर्स, वो हर वीक हमारे से लाइक पेमेंट आती थी उनसे और वो सामान लेते थे। तो पता लगा जी कुछ वेंडर्स ने हमारे से बिलिंग ही नहीं हुई हमारे को। अब वो बिलिंग ही नहीं हुई हमारे को, तो हमारे को ये जो चीज पता लगी कि वो बिलिंग नहीं हो रही उनको, वो पता लगा हमारे को 2 महीने बाद पता लगा, 3 महीने बाद पता लगा, जब हमने एनालिसिस किया डाटा को कि यार इसकी तो पहले तो लगातार बिलिंग हो रही थी और पिछले 2 महीने में, 3 महीने में तो उससे माल गया ही नहीं है। तो जब हमने उसको पता लगा और उसको हमने फोन किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को, यार क्या मतलब कोई दिक्कत है, कोई माल ठीक नहीं है, रेट ठीक नहीं है, तो बोला लेकिन तब तक क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बिजनेस कोई बंद हो गया होगा, इसका मतलब उसने कोई ना कोई दूसरी फैक्ट्री से माल लेना शुरू कर दिया, और वो माल उसने लिया और उसके कारण उसकी फैक्ट्री वो दूसरे के साथ सेट भी हो गया। अब उसके जो कस्टमर्स थे वो भी उसके साथ सेट हो गए। अब अगर मैं उसको पूरी तरह कन्विंस कर दूं, पूरा मैं उसको रेट भी दे दूं, तब भी वो मेरा माल नहीं लेगा, क्योंकि 2 महीने 3 महीने से वो चेन जो थी वो टूट चुकी है। तो उसने मेरे को कहा, जो ये बंदा था, उसने कहा यार मेरे को जो ना ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू समझो या जो भी समझो, कि मेरे को एक ऐसी एक्सेप्शनल रिपोर्ट चाहिए मेरे को कि एक कस्टमर शुड ट्रांजैक्ट विद कंपनी एवरी मंथ, इवन एवरी वीक। Sometimes if a customer does not do business, it means customer switch to another company. By giving parameters above, one can know who all are the customers who did or didn't do business in particular months. तो उसने कहा कि मैं इसमें चूज कर लूं, अक्टूबर के अंदर मेरे पास ट्रू मतलब उसके साथ बिजनेस हुआ, फॉल्स का मतलब बिजनेस नहीं हुआ, तो ये मे बी है, ट्रू है, ये फॉल्स है। तो मैं जैसे जैसे जो भी चूज इसमें चूज करूं, कि मैं ये चाहता हूं कि ऐसे मेरे कस्टमर बताओ जिसके साथ मेरा सबसे बिजनेस हुआ, या ये अक्टूबर में था, नवंबर में था, दिसंबर में था, लेकिन जनवरी में
फॉल्स है, उससे बिजनेस नहीं हुआ या मे भी हुआ, और फरवरी में उससे बिजनेस हुआ ही नहीं, मार्च में बिजनेस हुआ ही नहीं। तो उसने कहा कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैं सिलेक्ट करूं 1 सेकंड में मेरे को रिपोर्ट आ जाए। ऐसे कितने कस्टमर हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जैसे मेरे को ये रिपोर्ट मिलेगी, वीकली रिपोर्ट मिलेगी, तो मेरे को पता लग जाएगा यार ये जो बंदे हैं, ये देखिए ये कस्टमर ये सारे बिजनेस मेरे से कर रहे थे, अक्टूबर में किया, नवंबर में किया, या वीकली मेरे को बोले तो वीकली दे सकता हूँ। लेकिन जिस भी वीक में ब्रेक होगा, वो इमीडिएटली अगर उसका ओनर उसको फोन करेगा कि अरे भाई क्या बात है, इस वीक तुमने माल नहीं लिया, तो क्या होगा, ओनर का फोन आ गया, इमीडिएटली वो कस्टमर उसका बना रहेगा। लेकिन अगर वही काम उसने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर उसको फोन किया, तो देयर आर वेरी वेरी रेयर चांसेस कि अगर वो चाहेगा तब भी वो उसको बिजनेस दोबारा नहीं दे पाएगा। तो ये करते के साथ जैसे मैंने किया, और यहाँ पे जाकर के मैं एक्सेप्शनल रिपोर्ट देखूं कि अच्छा यार ये मेरे को दिखाओ जी एक्सेप्शनल रिपोर्ट क्या है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, बस ये बटन दबाते इसने ये बता दिया, देखिए ये ऐसे कस्टमर है मेरे जिनके साथ मेरा जो बिजनेस हो रहा है वो देखिए अक्टूबर में सारे बिजनेस हो रहा है मेरा, नवंबर में सब में बिजनेस हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, जनवरी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन फरवरी मार्च में बिजनेस नहीं हो रहा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे पैरामीटर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में है, इसमें मे भी इसमें फॉल्स है। लेकिन अब अगर मैं इसमें ये बोल दूं कि अच्छा यार मेरा दिसंबर भी मेरा मे भी है, और ये वाला मेरा जो है मे भी है, और ये मेरा जो है ट्रू है, जैसे कि मार्च में उससे बिजनेस हुआ हो या फरवरी में बिजनेस हुआ हो, केवल मेरे को ये ऐसे केस दो जिसके अंदर या इसमें बिजनेस नहीं हुआ दिसंबर जनवरी में, फिर मैं जाऊंगा उसी रिपोर्ट के ऊपर, और जैसे मैं जाकर के इस पे करूंगा कि अच्छा जी ऐसी मेरे को रिपोर्ट बताओ, तो देखिए केवल एक कस्टमर ऐसा मिला जिसके साथ इसका जो ये वाली जो मेरे पैरामीटर है उसका वो कंप्लीट करेगा जी मेरा इसके अंदर। ये अक्टूबर में है, नवंबर में है, दिसंबर में उसका बिजनेस उससे नहीं है, जनवरी में भी उसका नहीं है, दिसंबर 16 में और जनवरी 17 में उसको हमारे को नहीं मिलेगा। देखिए इसमें नवंबर के बाद सीधा फरवरी के अंदर ये रिपोर्ट आ रखी है। तो इस टाइप की एक्सेप्शनल रिपोर्ट निकाल करके हम चीजों को भाई कर सकते हैं, चीजों को या बन सकती है इस टाइप की चीजें, और ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आपकी रिपोर्ट्स इस टाइप की बन सकती है। विजय जी थैंक यू। एक क्वेश्चन रमेश जी का है, हाउ टू सेलेक्ट सैंपल्स व्हाइल डूइंग वाउचिंग पर्टिकुलर एरिया से पेरोल। तो मैं पहले सैंपल सिलेक्शन पे मैं बोल देता हूँ फ्रॉम ऑडिट पर्सपेक्टिव, आप एक्सेल पर्सपेक्टिव से बता दीजिएगा। Ramesh ji and all the esteemed participants, what we do is we apply the concept of the materiality. So for example, if my materiality is based on revenue or expenses, I'll pick up my materiality limit. I mean, either it's revenue or profit. Suppose based on profitability, I identify that the materiality comes out to be 1 crore rupees. Then 1 crore becomes the planning materiality. Then I'll compute the tolerable error. Tolerable error is normally 50% to 75% of the planning materiality. Let us say I take 50% as the tolerable error, which means 50 lakhs is my tolerable error. Then I'll compute my SAD, which is summary of audit differences, which is 5% of planning materiality. So 5% of 1 crore, which means 5 lakh rupees is my SAD. So what I normally do is, as an auditor, I'll pick up all items more than my T, because that is an error. Those are the items where I cannot afford an error. So all items, individual items having a value of more than 50 lakhs, I will check 100%. And then for the rest of the items, I'll pick up samples. And how do I pick up samples? I pick up samples based on whether they are daily operating or weekly operating, monthly operating, quarterly or annual, according to the guidance note of the ICI and internal control over financial reporting. If a control is operating annual, then I'll take up 1 sample, obviously. If a control is operating quarterly, I'll take up 2 samples. If it is monthly, again 2 samples. If it is weekly, 5 samples. If it is daily, 15 samples. And if it is multiple times a day, then it is 25 samples. Now the question is how to pick up samples so that they are random samples, so that there is no element of bias in picking up the sample. So Vijay ji, you can explain that, how to apply the formula of random. Suppose there are 5,000 vouchers, so how to pick up 25 vouchers? Yes, so like exactly, so there is a like for sampling, the question is very good. एक संजीव जी, तो श्रेया तो जो है ना हाँ नहीं भर पाई, लेकिन आप तो भाई वो मैंने कहा कि जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको आप एक चॉकलेट जो है ना जरूर भिजवाया करो सर। जरूर भिजवा देते।
जरूर। तो वो सोच रही थी कि संजीव जी आएंगे तो पूछ के बताऊंगी मैं। 100%, 100%। देखिए इतने बढ़िया आपके क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के, तो उनको आपने कुछ ना कुछ इंसेंटिव तो होना चाहिए ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए सैंपल्स के लिए इसके अंदर दो फॉर्मूले हैं जी। एक है आरएनडी, आरएनडी का मतलब रैंड, कि ये क्या करेगा आपको 0 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर दे देगा आपको, डेसिमल्स का नंबर। तो यहाँ पे जैसे मैं करूंगा तो ये देखिए काफी डेसिमल्स के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर होंगे और बहुत ही लाइक रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चांस होगा कि आपस में मैच करेंगे। बिकॉज अगर आप ये देखोगे मिलियन से भी ज्यादा ये जो है ना इसके अंदर ये आ रखा है जी। ठीक है, तो ये नंबर से आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 1000 करके या कुछ भी करके इसको भाई आप बना सकते हो, 1000 से करके डिवाइड या कोई नंबर। और एक इसका भी और इजी फॉर्मूला आ गया और उसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में क्या होता है जी, एक बॉटम नंबर देना होता है, एक टॉप नंबर देना होता है। तो अभी संजीव जी ने बात की कि मेरे पास 5000 वोचर हैं और वो वोचर नंबर भी अगर आपके पास हो, या तो आप उसको एक लाइन में दे दो, एक सीरियल नंबर दे दो सभी वोचर को 1 से लेके 5000 तक। आपने पता लगा जी 1 2 3 4 उनको ऐसे सीरियल दे दिया। या आप उनका वोचर नंबर आपके पास हो, यार मेरा जो स्टार्ट ही होता है वो 51,000 से स्टार्ट हो रखा है जी, राइट। और फिर उसके बाद आपने बोल दिया कि ये जो मेरा जा रहा है वो 56,000 तक जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रैंड बिटवीन में जो भी नंबर आप बोलोगे कि मेरा जो वोचर है कि 1 से लेके 5000 तक का है सीरियल नंबर पे, तो यहाँ पे आपने दिया। तो एक्सेल क्या करेगा, रैंड बिटवीन का मतलब जैसे लॉटरी निकालते हैं, जैसे मटके में से पर्ची निकालते हैं, वो 1 to 5000 का कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। इसने किया कि 748 जनरेट किया, और इसको जैसे मैं कॉपी करूंगा हर बार ये नया नंबर जनरेट करेगा। देखिए तो इसने क्या किया, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर जनरेट कर दिए। तो अब अगर आपको इसमें से 25 सैंपल लेने हैं तो ये इसको कितना खींच दीजिए, 25 तक खींच दीजिए। ठीक है जी, 25 वोचर हो गए ये जैसे। और इसको आप कंट्रोल सी करके और बगल में या कहीं पर भी जा करके और इसको पेस्ट वैल्यू कर दीजिए। पेस्ट वैल्यू इसलिए नहीं तो वो नंबर चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे करके इसको सॉर्ट कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने इसको सॉर्ट करना है जी। ये देखिए यहाँ पे मैं गया इसके अंदर। अब यहाँ पे आपने इसको सॉर्ट करना है जैसे नंबर्स को, तो यहाँ पे जाकर के डाटा पे मैंने आपको तरीका बताया और इसको A to Z कर दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसने आपके सामने 1 से लेके 25,000 तक के या 5,000 तक के जो वोचर वो नंबर निकाले इसने। तो इसने ये नंबर निकाल दिए कि अच्छा जी 64 आ गया, 70 आ गया, ये जो आगे। और इसके बेस पे आप इसको कर सकते हो कि जी ये वाले वोचर हैं जो इसको मैंने एज ए रैंडम सिलेक्ट करना है। तो ये जो है आपका बिल्कुल साइंटिफिक कह सकते हो, कोई इसके अंदर ये नहीं है कि किसी भी तरह का ये निकल सकता है। बाकी आपको रेंज के बेस पे करना हो कि मेरे को हाँ कि 1 से लेके 1000 तक की 5। विजय जी, मैं इसमें एक चीज और कहूंगा, जो भी ऑडिट इंस्पेक्शंस होते हैं उसमें ये जी सर, में जितने भी ऑडिट इंस्पेक्शंस होते हैं उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एस्टेब्लिश करना कि हमारा सैंपल बायस सैंपल नहीं था। तो ये जो टेक्निक आपने बताई है, रैंडम नंबर्स हम जनरेट करें, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्किंग फाइल्स में डेट और टाइम स्टैम्प के साथ कि देखो हमने अपने सैंपल सिलेक्शन से पहले ये नंबर जनरेट किए थे और इन्हीं को हमने यूज किया। क्योंकि हमें ये एस्टेब्लिश करना भी जरूरी है कि किसी सैंपल में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो कहीं ऐसा नहीं कि हमने उसको छोड़ दिया और आगे चल गए। और एक क्वेश्चन जो राहुल जिंदल जी का इसी से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि अगर सारी वैल्यूज जो टॉलरेबल एरर से ऊपर हैं, अगर वो सेम ही वेंडर की हैं तो हम क्या करें। सो राहुल, माय आंसर इज all those values which are above tolerable error are to be checked. Sample is to be drawn from the remaining vouchers. ऑब्वियसली वो तो अभी अब आपने बताया ना, अगर कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हैं वो तो हमें 100% करने ही करने हैं। हम तो बात उसकी कर रहे हैं जो जनरल की बात कर रहे हैं, उस जनरल के अंदर से हमने सैंपल के बेस पे उसको निकालना है। अब अगर मैंने अभी जो हमने उसकी बात की डेटा सीजिंग की, और वहां पे मेरे को निकल करके आया कि यार ये जो वेंडर इसका जो डेटस का है, ये कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कहीं भाई फेक हो सकता है, कहीं पे आपका ये हो सकता है ऐसे सेल बढ़ा रखी हो, तो उसको तो हमने 100% इन्वेस्टिगेट करना ही करना है, वो 2 हो या 200 हो या 50 हो। लेकिन रिमेनिंग जो है उसको हमने जो है ऑडिट टेक्निक्स के बेस पे उसमें 10% करना है कि 5% करना है, वो अपने डिपेंड करेगा कि डेटा क्या है, कितना हमने उस पर टाइम देना है, क्या चीज, वो जो भी आप टेक्निक उस पर लगाओगे उसके बेस पे आपको सैंपल निकालना है। बिल्कुल ठीक है विजय जी। विजय जी, टाइम ऑलरेडी हो गया है। इट इज 12:35।
मैं तो पर्सनली हमेशा आपकी एक्सपीरियंस का, नॉलेज का मुरीद रहता ही हूँ, और आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने मनीष बंसल जी जो बठिंडा से हैं उनको दी है। तो मनीष भैया, आई वुड मैं उससे पहले मैं भाई यस देखो यस आप लोगों का भाई ये जो है थैंक यू तो मैं बोल ही रहा हूँ सबको। देखो सबसे बड़ा थैंक यू तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मैं उसका बोलता हूँ। भाई जो होस्ट होते हैं वो तो ठीक है यार, भाई होस्ट तो तभी वो होस्ट कर पाएंगे ना जब अगर आप ही नहीं आओगे तो फिर कौन, तो संजीव जी और कौन जो है ना श्रेया। तो एब्सोल्युटली भाई अल्टीमेटली देखो धन्यवाद तो है ही है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, बट सबसे ज्यादा ये है कि आप अपना टाइम निकाल करके, संडे निकाल करके, और आप इतने ध्यान से आप चीजों को सुनते हो, क्वेश्चन करते हो। लेकिन और भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो ये मेरा जो है ऑफिशियल मेरा ईमेल आईडी है vijay@champexcel, ये मेरी वेबसाइट है, ये यूट्यूब चैनल है, बहुत यहाँ पे मटेरियल आपको मिलेगा, और ये मेरा जो है फोन नंबर है। तो यहाँ पे ये फोन नंबर किसी को ठीक से समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं 1 मिनट इसके अंदर ये लाइंस कोई ना कोई डाल देता है जी बीच में, तो ये लाइन इसमें हम हटा सकते हैं इसके अंदर। ये इसमें जाकर के मैंने क्लियर ओल्ड रैंक्स, ये देखिए जी, ये 9851198510, तो यहाँ पे आप ये नंबर नोट कर सकते हो जी। और मेरे यूट्यूब जो मेरी वेबसाइट है वहां पे भी काफी कुछ इसके अंदर चीजें पड़ी हुई हैं जी, तो वहां पे भी आप एक बार जरूर विजिट करिए। और बहुत बढ़िया बढ़िया अगर आपका कोई काम है, जैसे एक मैं छोटा सा और मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि मैंने अभी किसी के लिए जो ना एक्सेप्शनल रिपोर्ट बनाई थी कि स्पेंड एनालिसिस, कि क्या था, परचेज का डाटा है जी, ह्यूज डाटा है, उसमें हजारों लाइक जो है ट्रांजेक्शन है, देखिए 27,000 आइटम्स है इसके अंदर। और इसकी जो आइटम डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर क्या है, कहीं पे डीजल है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं पे पावर है, कहीं पे कुछ है। अब उसके बॉस ने बोल दिया या जहां जहां पे ये वर्डिंग लिखी हुई हो उसका मेरे को स्पेंड एनालिसिस करना है, उसका मेरे को मंथ वाइज स्पेंड एनालिसिस करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि डैशबोर्ड बना दिया, और मैंने यहाँ पे जो है ना कीवर्ड दे दिए कि आप अपने कीवर्ड डाल दीजिए जी। यहाँ पे जो भी आप कीवर्ड डालोगे यहाँ पे वो अपने आप से एक्सेल ढूंढ के लेके आएगा, हर एक लाइन में से जहां पे पावर लिखी हुई हो, जहां पे इलेक्ट्रिक लिखा हुआ हो, जहां पे एमसीबी लिखा हुआ हो, टेप लिखा हुआ हो, डीजल, पेट्रोल, बैटरी, इन सब के बेस पे वो रिपोर्ट बना करके आपको दे देगा कि अच्छा जी हर एक स्टेट वाइज अगर देखनी है आपको, कि चंडीगढ़ की देखनी है, दिल्ली की देखनी है, कि ये देखिए आ गया बैटरी, एमसीबी, पेट्रोल, Q1, Q2, Q3, Q4। अब अगर इसके अंदर आपने जाकर के चेक करना है जी मेरे को तो महाराष्ट्र की रिपोर्ट देखनी है, तो महाराष्ट्र की आ गई, आपने देखना हरियाणा की, हरियाणा की आ गई। तो ऐसे आप एनालिसिस करोगे तो आपका जो ऑडिट है वो, कल को आपने बोला जी पावर के बाद इसके अंदर तो मेरे को एक चीज और भी डालनी है, पावर की जगह कोई नई चीज डालनी है, यार ये चीज मेरी हो सकता है मिस, तो उसमें वो कंटेन्स देखेगा कि वो कंटेन करता भी है कि नहीं करता है। इलेक्ट्रिक की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपने डाल दिया, कुछ और डाल दिया, तो 10 डालो, 100 डालो, 50 डालो, जो भी कीवर्ड डालोगे वही कीवर्ड यहाँ पे देखिए ऊपर नजर आएगा। इसमें बोलो कि केवल बैटरी की देखनी है, बैटरी की रिपोर्ट आ गई, पंप का देखना है, एमसीबी का देखना है, अदर्स का देखना है, तो ये पूरा का पूरा ऐसे नजर आएगा। तो इस टाइप की रिपोर्ट्स मैंने काफी मैं जनरेट कर सकता हूँ और कर सकते हैं। कभी होगा तो मे भी हम स्पेंड एनालिसिस के ऊपर जो है एक रख सकते हैं कि अच्छा यार इसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे ये रिपोर्ट बनानी है, कैसे इसको जो है करना है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगा करके इसको पूरा A to Z हम इसके ऊपर एक पूरा बिजनेस साइकिल कर सकते हैं। ठीक है जी। So thank you, Vijay ji. And as you rightly said, I'm extremely thankful for the esteemed members, because जहाँ host के लिए और speakers के लिए time देना important है, वहीं अगर आपने सही कहा, अगर participant ही नहीं होंगे तो कहाँ से webinars होंगे? So I'm extremely thankful for all the participants, and I would request Manish Bansal ji from Bathinda, who is the vice chairman of Bathinda branch, to kindly propose awards for the speaker, for the introducer Shreya ji, and for all the members. Thank you, Sanjay Bhaiya. Vijay sir, no word can thank you indeed, but we always find a lovely experience whenever we attend this webinar. So on the behalf of CA Parivar and members in fraternity, Manish bhaiya, sorry. Manish bhaiya, just a minute. I just noticed that Sanjeev Bijlan ji, chairman of Yamunanagar branch, is also there. So I acknowledge his presence as well. Right, sir. Right, sir. So I would like to thank Vijay Agarwal ji for his kind deliberation, which had enlightened our members and profession in the large. Sir, your knowledge has always made us wonder, and which helps in a practice a lot. And no words can repay, and no words can thank you. But still, we also look for a future initiatives.
And next, I would like to thank CS Sanjeev Singhal ji also, despite of his being hectic schedule, he always drags out the time to help out the members in large and in the profession, and he take a keen interest and pain for all of us. And to my the present audience and the members, sir, or without your support, this webinar couldn't have been possible. And we are looking forward for more such of the initiatives. And last but not the least, I would like to thank CA Shreya Bansal ji for his lively connect and making all the queries reach with the members and the participants. Thank you, Shreya ji. Thank you, Vijay ji. Thank you, Sanjeev Bhaiya, for such a great initiative. Thank you, ji. Thank you, Sanjeev ji. Thank you, Manish ji. Thank you, Shreya. Thank you so much. Thank you, sir. My pleasure. Sir. Thank you so much. Sir, Thank you, kabhi thank you, Batinda, Vijay ji. Batinda Always a side pleasure. aana to most welcome. And thank you. As I came to know, the CA Rishabh Agarwal ji, Chairman Batinda branch and Chairman Yamunanagar branch also, sir, for sparing out their time for this one webinar. Thank you, sir. So Manishi, I would request CA Rishabh Agarwal ji and CA Sanjeev Bijlan ji also to say a few words. I'm just making them co-host. We can start with Rishabh Agarwal ji. Rishabh ji, are you there, sir? भैया हमको unmute करना पड़ेगा एक बार. हाँ, I've already assigned. Okay. So Sanjeev Bijlan ji, now you can. I think he's just left, भैया. So we can ask Sanjeev ji. Yes. Sanjeev Bijlan ji, kindly unmute yourself and say a few words. Sanjeev ji, unmute कर लीजिए. Am I audible, Sanjeev ji, sir? kindly unmute. Yes. Now you're audible. Thank you, संजीव सर. एंड सर, जो आप लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हो और जो इस लॉकडाउन पीरियड में सर आपने इनिशिएटिव लिए हैं और वेबिनार सर ये आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, आई से थैंक्स फॉर दैट. और इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ रही है सर, हमारी ऑडिट टेक्निक्स भी हम लेटेस्ट यूज कर पाएंगे. एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल द स्पीकर्स. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you. I recognize the presence of all, including N.K. Bansal ji, V.K. Gupta ji, Ramesh ji, Hemant Pava ji, and in fact all. So my sincere thanks to all of you. And tomorrow we have yet another interesting session, path to success and opportunities for chartered accountants, in which besides me, our honorable council member Srinivas Joshi ji from Mumbai and our honorable and beloved past President Amarjit Chopra ji will be the speaker. Timings are 11 a.m. to 1 p.m. The link and the passwords have been sent in the same email and same WhatsApp on which the information for this WhatsApp has been sent. And next week, we have 3 more programs coming up. On next Saturday morning, 13th morning, we have a program with Ludhiana branch. 13th afternoon, we have a program with Jalandhar branch. And 14th morning, we have a program with Batinda branch. Thanks everyone for such a love and affection. Thank you, Sanjeev. Thank you, Vijay ji. Thank you. Thank you. Thanks everyone.